everyone. Today's FDP session is truly special because we are joined by a personality who doesn't just teach research, he simplifies, systematizes, and strengthens it with experience and insight. Our esteemed speaker, Dr. Ashish Linje, is a renowned trainer, research consultant, and academic leader with over 23 years of teaching and 20 plus year of training experience. He is the founder director of Research Vidya and has guided 30,000 plus research scholars across 1,000 plus workshops in more than 150 institutions. With deep expertise in research methodology, advanced statistical analysis, SLR, bibliometric and meta-analysis, and SEM, Dr. Linje has been a trusted trainer for pre-PhD coursework across almost 9 universities, and he is also a mentor behind 200 plus research projects. As we explore today's theme, guidelines to publish research articles in high quality journals, we couldn't have asked for a more experienced and insightful guide. So, ladies and gentlemen, please welcome a true research enabler, mentor, and academic powerhouse, Dr. Ashish Linge, sir. We welcome you, sir, on behalf of JIT. Thank you, Bhavna madam, for My pleasure, sir. using so many adjectives for me. दिस वाज ऑल शॉर्टन बाय मी कि मुझे लग नहीं रहा था कि मैं कहाँ कट ऑफ करूँ इतना ब्यूटीफुली डिजाइन आपका प्रोफाइल था सर Thank you, ma'am. इट्स माय प्लेजर मोस्ट वेलकम सर So, may I proceed with my session now? Bhavna madam? yes sir with the permission of HOD ma'am you can proceed. Yes, definitely, sir. Definitely. Yes. Okay. So, with your permission, I'm sharing my screen now. Sure sir. I hope you can see my screen. So till now your screen is not visible I think. Okay, it must be loading, I believe. We'll wait for a minute. Let me share it again. I believe some feature has been activated. So, can you see it now? Yes sir now we can see sir. Okay, great. Let me minimize it. Okay, I believe all set. Yes sir. Screen is visible, na? Yes sir. Okay. So eventually all set. We must proceed with our session. So, good evening, everyone. At the outset, I must extend my heartfelt gratitude towards Dr. Gupita ma'am. She's in communication with me regarding today's session for last 15-20 days or so. And kindly accept my apologies. I'm not keeping well for last 10 days or so. I was supposed to engage couple of sessions in this workshop,
but somehow I couldn't make it. And today I have decided that I must interact with you all because you must be waiting for my session. So hereafter, I'll be dealing with the topic as you can see on the screen, is strategy to publish in high quality journals, specifically how to reach up to Scopus, Web of Science, and ABDC. So next 60 minutes or so, we'll be having discussions on how to reach or how to achieve Scopus publications. So this is the agenda. We will be trying to seek answers to these 5 questions. So firstly, we'll just get aware about the research publication scenario in India in general and in the world in particular. Then we'll be having discussions on importance of research publications. Why must we publish in high quality journals? Then challenges, what challenges, खास करके beginners face while striving for publications in high quality journals, then reasons of rejections of the manuscript, and eventually we'll have discussions on strategy to publish in high quality journals. So as far as the first 4 issues are concerned, I will deal with these 4 issues in just 10 minutes, and my major focus will be on the strategy to publish in high quality journals. So out of my experience, I have chalked out few things. I have realized some dynamics are prevailing at that particular level. So we must understand those dynamics and it becomes much easier. Scopus publication must be everyone's dream. We all are hardcore academicians and you know very well publication is a indispensable part of our profile and we must strive for it. But at the same time, you could see around many of the academicians, they are struggling to achieve it. To be very honest, it is not difficult and it is not impossible. It is possible with a proper planning, and that plan I'm going to share with you all in today's session. So we are getting into my today's presentation. So firstly, we'll have a quick glance over publication scenario. I'm sharing some facts with you. I had an opportunity to hear to EIC, which stands for Editor-in-Chief of Emerald Insight. You must be knowing that as far as management faculties like we all are concerned, it is our dream to feature in Emerald and elsewhere. ये दो सबसे बड़े journals हमारे sense में या publication houses माने जाते हैं management के लिए. And even I have been striving very hard to appear in Emerald Index Journal or for that matter elsewhere Index Journal. So I had an opportunity to hear to EIC of Emerald, and she was sharing some statistics because she has been receiving so many manuscripts in a day, and she was sharing her experiences, and it is for the first time I could observe and EIC has come forward and she's talking and she's sharing some experiences about what mistakes beginners generally commit while submitting their manuscripts. So I got some deep insights listening to her, and I'm just sharing few glimpses of it. The one statistic cited by her is she told that around 2,25,000 researchers have been joining our community. Means इतने बड़ी तादाद में अगर नए researchers they have been joining our researchers community, then obviously year by year this competition has been intensifying. And now if you have a quick word with EICs of some other publication houses, and you will always find an excuse. One of the EICs that I am in close contact with, Priyanka, I should not cite the name of the publication, but still Scopus Q1 Q2 के वो editor है, and I'm in close communication with her, and she was telling that sir, literally submissions are flooding and we are totally clueless because we have got a very limited space and we could publish hardly 50 articles in a year, 50 articles in a year. And at the same time, we have been receiving manuscripts in thousands and lakhs many a times. So as you can see, competition has already got intensifying and it will continue intensifying year after year. So we need to gear up. That's the first thing.
Means so many such new research scholars have been joining community, and importantly, this new blood, they are well prepared, and that is why we we senior generation rather, we should gear up competing with this new generation which is more techno savvy and which is more groomed with this AI and all. So competition is twofold. The competition is with our peers and competition with this new generation as well. The second statistics I must cite over here, it is being published in Maharashtra Times few years ago. And according to that particular article, 70% PhD research scholars, they couldn't finish their research work in a stipulated period of time, that is 3 to 5 years, you may consider. So something is definitely going wrong. Out of every 170 are struggling to finish their research work within 3 years or 5 years. And to be very honest, actually this time, I believe it's a lenient time frame. 3 से 5 साल में तो PhD होनी चाहिए, but still a larger lot is struggling finishing their work. So of course there are some lacunas, and there the article has also specified some reasons behind it. Why these research scholars have been struggling, and two important reasons. Actually, they list out 10 to 12 reasons, but the top two reasons that they have cited, that they are lacking mentoring. Means उनका कहना ये था कि हम लोग मेहनत करने के लिए तैयार हैं, पर हम लोगों के पास आइडियाज नहीं है, क्या करना है वो मालूम नहीं है. एंड सेकंड वन इज द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिसोर्सेस अवेलेबिलिटी. So these two important reasons that particular article highlighted, and even I am more convinced with these reasons, and I have got my own list of these reasons, and you may see around कि many of our peers have been applying for extension of PhD, they have been re-registering. There are so many examples, such live examples around. Then the third statistics that I wish to share, around 3 lakh articles are submitted every year for publication, and this is in Indian context. इतनी बड़ी तादाद में आर्टिकल्स सबमिशन के लिए जा रहे हैं. उससे भी बड़ा फैक्ट, you just refer to the rejection rate, the pointer number 4. 72% articles are rejected, and out of this, if we refer to high quality journals like Scopus, ABDC, and Web of Science, this rejection rate is as high as 90%. So of course, अगर ये इतनी बड़ी तादाद में rejections हो रहे, तो we must delve into what are the reasons and what are the challenges there. And the last statistics you may refer to, 80% manuscripts face desk rejection. Desk rejection का मतलब होता है कि no one is actually reading your manuscript. It is out and out at the desk. It has got rejected, and there are several reasons for it as well. So this is the research scenario around, and this is definitely not encouraging. So with this challenge, again, we need to prepare ourselves, and what preparation, what steps we could make to get into Scopus, that I am here for. We are quickly getting into our second agenda. That is, why do we undertake research, and why do we strive for research publications? There are some reasons, quite obvious reasons. The first obvious reason is to fulfill our academic requirement. Means if you are a PhD research scholar, and these days it is now mandatory to publish at least one Scopus article, you can say. आपको भी मालूम होगा, अर्लियर जो डायरेक्शन से अभी जो PhDs गवर्न हो रही है, 2024 के जो डायरेक्शंस थे, डायरेक्शन 38 प्रिसाइजली RTM in UK सेंस में, तो उसमें ये उल्लेख है कि रिसर्च स्कॉलर मस्ट पब्लिश एटलीस्ट 4 आर्टिकल्स, जिसमें एक नेशनल कॉन्फ्रेंस, एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस बोला गया है, और एक पीयर रिव्यू जर्नल या स्कॉलरली जर्नल जिसको कहते हैं, और चौथा जो है उसमें ऑप्शंस दिए गए थे, UGC केयर लिस्टेड जर्नल, या फिर स्कोपस, या फिर वेब ऑफ साइंस. एंड यू मस्ट बी नोइंग दैट इन 2025 ओनली, अक्टूबर प्रिसाइजली, कि कुछ गाइडलाइंस आई है, एंड दैट UGC केयर लिस्ट हैज बीन डिसॉल्व्ड. तो अभी ऑप्शन बचते हैं स्कोपस और वेब ऑफ साइंस, एंड इट इज वेरी चैलेंजिंग, एंड एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट दिस, कि हाउ टू गेट अप टू दैट. So to fulfill our academic requirement, we must write, and we must strive paper publications.
और हम लोग सब फैकल्टीज है, तो शायद हम लोगों को इंस्टीट्यूशन की तरफ से भी कुछ टारगेट्स होते हैं फॉर आवर अप्राइजल पर्पस। ईयरली जो अप्राइजल्स होते हैं, मेनी ऑफ द इंस्टीट्यूशंस दे हैव मेड इट मैंडेटरी, एटलीस्ट वन स्कोपस और कपल ऑफ स्कोपस पब्लिकेशंस यू नीड टू हैव इन योर प्रोफाइल इन अ ईयर। तो ये भी एक पार्ट इन दिनों नागपुर में ही दिख रहा है। दिस कल्चर हैज बीन डेवलपिंग, एंड व्हाट आई कुड सी इन रिसेंट टाइम्स, many of the institutions, they have started incentivizing the faculties. They have been providing incentives, though these are conservative one, but incentives देना अभी शुरू हो गया है। नागपुर में ये कल्चर बिल्डअप हो रहा है। If you are successfully publishing in Scopus or Web of Science or other high index journals, then you will be incentivized by your institutions. So again, this is one of the motivators you can say कि जिसकी वजह से हमने पेपर लिखना चाहिए और पब्लिश करना चाहिए। Then another reason to upgrade our credentials, we are academicians, so academics and research, they go hand in hand, and that is why आपके resume में अगर research publications दिखते हैं अच्छी क्वालिटी, तो obviously आपका candidature जो है वो substantiate हो जाता है। आप देखेंगे आज इंटरव्यू की प्रोसेस, हम सब लोग academicians है, whenever we apply to any of the premier institutions for a faculty position, may it be assistant, associate or professor grade, so you will find that there is much of the focus on your research profile only. They check your research profile, specifically your Google Scholar profile, and importantly your Scopus profile. आपका Scopus ID है क्या, author ID आपका जनरेट हुआ है क्या Scopus का, ये सब चीजें देखी जाती है। उसके बाद फिर आपको कॉल आता है या नहीं आता है इंटरव्यू के लिए, ये डिपेंड करता है टू ए लार्जर एक्सटेंट आपका रिसर्च प्रोफाइल कितना तगड़ा है। और अगर आपको स्कोपस प्रोफाइल क्या होता है ये नहीं मालूम है, तो ऑब्वियसली हम लोग अप्लाई भी नहीं कर पाएंगे, यानी हमने अप्लाई करने से पहले ही हमारा कैंडिडेचर जो है वो तो कैंसिल हो चुका है। एंड दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग दिस पर्टिकुलर डायनामिक्स। आप कोई भी इंटरव्यू के लिए अगर जाते हो तो आपका रिसर्च प्रोफाइल चेक होने वाला है। अगर आपके रिज्यूमे में भले ही एक जेन्युइन स्कोपस भी है, तो भी यू आर कंसिडर्ड एज ए पोटेंशियल कैंडिडेट। और बहुत बार तो आपके रिज्यूमे में सिर्फ स्कोपस है, दैट इज द ओनली क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन। मेनी अ टाइम्स यू मस्ट हैव रियलाइज्ड, you apply to a premier institute and you will start realizing and you will get more convinced that ki sir you are truly very right कि whenever we are trying to apply for a position, faculty position in any other institution, they are actually asking for how many Scopus publications or ABDC publications you have got, and that too the genuine one. मैं genuine और जो predatory होते हैं उसके ऊपर मैं थोड़ी देर बाद आ ही रहा हूँ। Then for career advancement as well, career advancement तो छोड़ दो, आज नौकरी टिकाना उसके लिए भी मुझे लगता है your Scopus publications are all the more important, क्योंकि अप्राइजल में चेक किया जाता है। And there are some isolated cases around. You might have heard that कि many of the faculties they were sacked just because of not compliance with publications issues. जो टारगेट्स दिए जाते हैं साल में 2 स्कोपस और बाकी 2 आपके peer review journals, and those faculties who are not being complying with this particular standards, they are sacked. तो उनके नौकरी टिकाना भी एक चैलेंज है। At the same time advancing in your career, for that again you will be requiring publication only. और मेरे ख्याल से ना एक मैं ये भी बात कहना चाहूँगा कि करियर ग्रोथ दोनों सेंस में मैं बोल रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल भी। और मैंने देखा जिनके स्कोप यानी मेरे साथ ही जिन्होंने जर्नी शुरू की, रादर जो मेरे स्टूडेंट्स रहे हैं, they have been flourishing, they have been wonderfully doing well. I could have regular we generally discuss the things regularly, and what I come to know, it is only they generally thank me umpteen times that sir we got associated with you and we had some Scopus publications, and that's the thing that is the turning point of our career. So they are placed abroad as well, and they have been wonderfully doing well, and the credit goes only to research, not to me, only to the efforts they have put in. Then another stipulation is why we must take up research publications. To become PhD supervisor, it is mandatory to have at least 5 Scopus publications. As far as Nagpur University's rules are concerned, you require at least 5 Scopus publications, and तो आप supervisor आप बन सकते हो।
Then another one, possibly a genuine one, to improve self-image as a genuine academician. तो जिसके स्कोपस genuine publications बोल रहा हूँ मैं, जिनके स्कोपस के genuine publications होते हैं, they are well received. जो गेस्ट लेक्चर्स वगैरह आते हैं या वर्कशॉप में रिसोर्स पर्सन्स करके जो इन्विटेशंस आते हैं, ऑब्वियसली रिसर्च का उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है. सो यू आर रिकॉग्नाइज्ड एज ए ट्रू रिसर्चर एंड ए जेन्युइन academician if you have got some good publications in your credit. So these are few reasons which I had identified according to my exposure and acumen, you can say. Now we are quickly got down to the third issue. What challenges are there in research publication? I have identified only 3. Rather, I will try to focus more on the 5th issue, that is the strategy. Quickly, we'll have discussions on only 3 elements. The first thing, in Nagpur's context, Nagpur and Vidarbha's context in general, lack of research environment. So you know very well what basically research environment है. ऐसा एक ऐसी जगह जहाँ पे रिसर्च की बातें हो या रिसर्च बड़े लेवल पे चल रहे हो या फिर उसको कुछ क्या बोलते हैं कॉग्निजेंस कोई ले रहा है. और ये तीनों चीजें जो मैंने बोली हमारे यहाँ थोड़ी सी मिसिंग लगती है. मैं अभी एक बड़े इंस्टीट्यूशन में गया था एज अ रिसोर्स पर्सन एंड वन ऑफ द फैकल्टीज ही टोल्ड मी दैट सर आपकी वैल्यू नहीं हो रही है नागपुर में. तो मैंने बोला ऐसा नहीं है यार, आई एम क्वाइट ऑक्यूपाइड. नहीं सर बोले द एनवायरनमेंट इज नॉट healthy over there, research environment is not healthy. Yes, बोला यार I must accept this, but still this environment is lacking and that is why हम लोग शायद थोड़ा सा रिसर्च में पीछे. थोड़ा क्या, मैं तो मेरे कीनोट एड्रेसेस जब देता हूँ मुझे लगता है यार लगभग 20 साल पीछे हम लोग चल रहे हैं. मैं बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के साथ जुड़ा हुआ, इवन नॉर्थ के कुछ कोलैबोरेशंस है मेरे साउथ में. एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ इंडिया आई कुड सी एंड आई हैव बीन इंटरेक्टिंग विद द फैकल्टीज, द रिसर्च स्कॉलर्स, सुपरवाइजर्स एज वेल. So the trends prevailing there and the conventions prevailing there, and if we compare it with our region, तो मुझे अभी भी ये सेंस है कि जो बेसिक चीज़ें भी अभी हम लोग नहीं पहुंच पाए हैं. तो लैक ऑफ एनवायरनमेंट इज वन ऑफ द डिस्करेजमेंट एंड दिस वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चैलेंजेस दैट वी हैव बीन फेसिंग. अभी जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ कि हाउ टू रीच अप टू स्कोपर्स, बट इस प्रकार के लेक्चर कितने हुए हैं अपने यहाँ, कितने हम लोग को हैंड होल्डिंग मिली है. आज तो मैं उल्टा सीन देखता हूँ. फैकल्टीज दे आर वेरी मच ईगर कि जहाँ कहीं भी मैं जाता हूँ लेक्चर्स के लिए मुझे एक ही क्वेश्चन आता है कि सर स्कोपस तक कैसे पहुँचेंगे. यानी क्या इंटरेस्ट तो दिख रहा है बस, इंटरेस्ट तो दिख रहा है. खास करके न्यू जनरेशन जो है दे आर इंटरेस्टेड बट दे आर डायरेक्शनलेस. उनके पास सब कुछ है, दे टेक्नो सेवी जनरेशन इट इज, बट स्टिल दे आर, जो मेंटरिंग लगता है एक या फिर जो माहौल लगता है दैट, उसकी वजह से मैंने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस ऐसे भी लिए. मुझे लोग बताते हैं कि सर मैं शुरू में जब इस फील्ड में आया आई वाज वेरी एंथुसियास्टिक अबाउट ऑल दिस, बट एक बार सिस्टम में आ गया तो उसके बाद फिर मैं ये सब भूल गया कि मुझे स्कोपस करना है. मीन्स वो भी एक पार्ट है कि सिस्टम में कोई बात ही नहीं कर रहा है कि यार स्कोपस तक कैसे पहुंचना है. तो ये मुझे एक लगता है बड़ा चैलेंज है अपने यहाँ पे. और कुछ हद तक मुझे लगता है रिसर्चर का अपना खुद का एटीट्यूड. थोड़ा सा मैं ये भी बात करना चाहूँगा कि मैं आपको भी पूछ रहा हूँ कि यार क्या आसान लगता है आपको, पीएचडी करना या फिर स्कोपस में पब्लिकेशन करना. तो योर ऑनेस्ट आंसर मस्ट बी कि सर पीएचडी करना आसान लगता है, पीएचडी हो जाता है, पर रिसर्च पेपर स्कोपस में पब्लिश करना इज क्वाइट डिफिकल्ट. फिर बात ये होती है कि यार भाई तू 300 पेजेस लिख सकता है तो फिर 20 पेजेस लिखने में क्या प्रॉब्लम है. यहाँ पे लगता है एटीट्यूड बॉस. वो 20 पेजेस बहुत भारी होते हैं, एक एक शब्द एक एक लाइन बहुत ज्यादा केयरफुली लिखनी होती है. वो 300 पेजेस हो जाते हैं. तो ये मुझे एक लगता है कि हमारे यहाँ माहौल ना बनने की वजह से शायद एटीट्यूड डेवलप नहीं हो पा रहा है. और तीसरा लैक ऑफ मोटिवेशन फॉर रिसर्च. मैं इस सेंस में कहूँगा कि जहाँ कहीं भी हम लोग काम कर रहे हैं वहाँ पे रिसर्च को लेके खास करके आप रिसर्च सेंटर्स की भी बात करते हो तो हमारे यहाँ अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर उतना सपोर्टिव नहीं है. आज भी जब मैं एक रिसेंटली एक रिसर्च हुआ था मालूम है आपको, मैं आई मस्ट शेयर दिस विद यू. उसमें ये पूछा गया था रिसर्च स्कॉलर्स को कि आपको अगर ऑप्शन दे दिया जाए कि पीएचडी के लिए आप सुपरवाइजर ले या ना ले, तो 100 में से 90 लोगों ने कहा था कि हम लोगों को सुपरवाइजर की जरूरत नहीं है. गेटिंग मी?
तो शायद आपके दिल से भी ये कुछ निकल रही होगी ऐसे आवाज है कि अगर ऑप्शन दे दिया जाए तो यार बिना सुपरवाइजर के ही कर लेंगे, यानी क्या कहीं ना कहीं चीजें तो मिसिंग जा रही। सुपरवाइजर किस लिए होता है? सुपरवाइज करने के लिए ना। और वो अगर आपको नहीं चाहिए तो समथिंग मस्ट बी देयर इन द सिस्टम की जो शायद कंडीशन नहीं हो रहा है रिसर्च के लिए, रिसर्च के सेंस में। दूसरा, जहाँ कहीं भी हम लोग काम कर रहे हैं वहां पे भी अभी इंसेंटिव्स तो अभी अभी शुरू हुए हैं। हर एक साल 2 साल से मैं देख रहा हूँ कि इंसेंटिव वाइज कर रहे हैं फैकल्टीज को। पर उससे पहले एक तो जैसे पीएचडी के जो रिसर्च स्कॉलर्स है उनका एक कंप्लेंट होता है कि सर हम रिसर्च पेपर लिख नहीं पा रहे, पीएचडी कर रहे हैं, पीएचडी का काम नहीं हो पा रहा है, डेटा कलेक्शन के लिए नहीं जा पा रहा हूँ। कारण क्या? तो छुट्टी नहीं मिल रही है, यानी क्या सिस्टम इज नॉट सपोर्टिव दैट वे, ऐसे कुछ कंप्लेंट्स आती हुई दिखती है। तो अगेन लैक ऑफ मोटिवेशन फॉर रिसर्च हमारे रीजन में स्पेसिफिकली, उसकी वजह से शायद हम लोग थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। So we'll not delve much into that, what are the reasons. Rather, we should better discuss with the strategies, how to come up with all this. So quickly, we'll have a glance over what are the major reasons of rejection of a manuscript. The first and foremost is unawareness about the prevailing standards. Scopus में जो भाषा चलती है, Scopus के अपने डायनामिक्स है जो मैं शेयर कर रहा हूँ अभी थोड़ी देर में, उसके बारे में मालूम ना होना ये शायद एक मेजर रीजन है। और आज भी जब स्कोपस पब्लिकेशन की बात आती है, खास करके जब टारगेट दिए जाते हैं, तो रिसर्च स्कॉलर ये चेक नहीं करता है कि पेपर लिखना कैसे है, वो पहले ये चेक करता है कि मेरा पब्लिकेशन आसानी से और पैसे लेके कहाँ से हो। वो एक बड़ा प्रॉब्लम लगता है, और ये इसलिए है क्योंकि अनअवेयरनेस है कि वहाँ पे क्या चलता है उसके बारे में। स्कोपस के अपने स्टैंडर्ड्स है, हर पब्लिकेशन हाउस के अपने प्रोसीजर्स है, अपने कन्वेंशंस है, और वो डायनामिक्स वहाँ के ना समझ में आना ये एक बड़ा कारण है कि स्कोपस का जो स्टैंडर्ड है वो स्टैंडर्ड को कंप्लाई ना करना एक शायद बड़ा कारण है पेपर रिजेक्शन का। दूसरा, ओरिजिनलिटी वैल्यू, यानी जो ऑलरेडी पब्लिकेशन जिसके ऊपर ज़्यादा हुआ है वो ओवरचर्न टॉपिक्स जो है वो उसको बार बार फिर से उसी के ऊपर काम करना, उसमें ऐसा नो नॉवेल्टी। मैं हाल ही में एक कोलैबोरेशन में काम कर रहा था, दैट मैम वाज शेयरिंग इट विद मी कि उसने 3 पेजेस का एक सिंपल सा पेपर लिखा था, एंड दैट टू वाज अ क्वालिटेटिव पेपर एंड इट गॉट पब्लिश्ड इन स्कोपस Q2 जर्नल। So I was so aghast. How could it happen, ma'am? So she bluntly told me that, sir, it is about originality value. Means I came up with such a topic which was very novel, and no major publications were available, and as such no knowledge was available on that particular topic, and that is why Scopus accepted that. So in our sense, originality value most of the times is the hindrance in this particular process. Then non-appealing results is another reason जो मुझे ये वाला जो पॉइंटर है जो इमराल्ड की जो EIC थी मैम, उन्होंने ये पिन पॉइंट किया था कि why do we reject manuscript, because there is such no novelty in the results derived. Then this is peculiar thing in our context. हमारे region में this is what you can most see prevalently, using outdated research methods. Research is a dynamic field. इतने ज़्यादा चैलेंजेस एज ए ट्रेनर, एज ए रिसोर्स पर्सन आई कुड अंडरस्टैंड। मैं अभी यहाँ पे कुछ बात कर रहा हूँ, अभी इसी मोमेंट पे कुछ ना कुछ डेवलपमेंट चल रही होगी, कोई नया फीचर, नया सॉफ्टवेयर आ रहा होगा, कोई नया वर्जन आ रहा होगा, कोई नई टेक्निक्स आ रही होगी। यानी इतना खास करके कोविड के बाद से ना ये तो और ज़्यादा स्पीडीली चेंजेस आ रहे हैं, एंड कोपिंग अप विद दिस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड्स इट इज़ बिकमिंग ऑल द मोर डिफिकल्ट। पर अपने यहाँ पे अभी भी रिसर्च की मेथड जो 20 साल पहले चल रही थी, पाई चार्ट पैराग्राफ से रिसर्च नहीं होता है, ये हम लोगों को समझना चाहिए। जो मैं मोस्ट प्रिवेलेंटली देखता हूँ कि पाई चार्ट एंड पैराग्राफ, दीज आर नॉट एनालिटिकल टूल्स, दीज आर डेटा प्रेजेंटेशन टूल्स, एंड स्कोपस विल नेवर एक्सेप्ट दिस। दे हैव गॉट देयर ओन स्टैंडर्ड्स। वहाँ पे बेसिक स्टैटिस्टिक्स भी नहीं, वहाँ एडवांस स्टैटिस्टिक्स की ही बात होती है। आज भी हम देखेंगे पीएचडी के जो मैं वाइवास देखता हूँ, अटेंड करता हूँ, उसमें मुझे टी टेस्ट, chi स्क्वायर टेस्ट मोस्ट प्रिवेलेंटली दिखती है, और दीज आर कंसिडर्ड एज आउटडेटेड टेस्ट। आप ये टेस्ट यूज करके अगर पेपर लिखोगे तो इट विल नॉट स्टैंड इन स्कोपस, एंड वी नीड टू एक्सेप्ट दिस स्टैंडर्ड्स। यानी ये जो बात थी 20 साल पहले, शायद टी टेस्ट और chi स्क्वायर बहुत अच्छी टेस्ट रही होगी हमारे लिए जब ये चीजें नहीं होगी उस वक्त के लिए। पर अभी 2026 में ये
ये इसको आउटडेटेड टेस्ट माना जाता है, तो वी शुड नॉट ऑपरेट ऑन दिस पर्टिकुलर टेस्ट. अनदर रीजन, साइटिंग सबस्टैंडर्ड लिटरेचर. ये एक तो मैंने देखा है कि लिटरेचर रिव्यू ये एक्टिविटी को ही बहुत लाइटली लिया जा रहा है, और एक्चुअली स्कोपस में जो स्टैंडर्ड्स चलते हैं वहां पे वेरी मच फोकस इज ऑन व्हाट लिटरेचर यू हैव रेफर्ड टू. इसमें एक कंसेप्ट है दैट इज कॉल्ड एज सेमिनल, ACMINAL. यू माइट हैव हर्ड ऑफ दिस सेमिनल literature. What basically seminal literature? These are the breakthroughs in our domain. What are breakthroughs basically? These are the basic theories you can say, or grounded theories you can say in general, or path-breaking research studies. जैसे अगर सर्विस क्वालिटी की बात हो रही है तो ऑब्वियसली विल रेफर टू सर्वेक्यूएल मॉडल ना, which is being established by Parshuraman sir, I believe in 1980s or so. अगर थ्योरी ऑफ प्लांट बिहेवियर की बात आ रही है जाके भी यू हैव बीन यूजिंग एटीट्यूड, सब्जेक्टिव नॉर्म, परसेप्ट बिहेवियरल कंट्रोल, इस प्रकार के वेरिएबल्स अगर आप यूज कर रहे हो, एंड इफ यू आर नॉट साइटिंग Eisen 1984, then obviously how could you write and publish a paper ना. इट यानी ये स्टेट ऑफ इंडिकेशन है कि यू डोंट नो द बेसिक्स बॉस. आप जो वेरिएबल्स पे काम कर रहे हो वो वेरिएबल्स कौन से थ्योरी से डिराइव हो रहे हो, हु हैज एस्टैब्लिश्ड ऑल दिस थ्योरीज. And if you are not aware, obviously you will not cite this original literature ना. तो इससे पता चलता है कि हम लोग नए खिलाड़ी हैं. स्कोपस में ये चीजें पकड़ी जाती हैं, यानी यहाँ पे मेटिकुलसली हर एक चीज देखी जाती है. यहाँ पे ना लिटरेचर जो हम यूज कर रहे हैं उसको कहा जाता है इनपुट, और हमारा मैन्युस्क्रिप्ट इज कंसिडर्ड एज आउटपुट. यानी आपका इनपुट रॉ मटेरियल अगर जो लिटरेचर साइट करते हैं, वी नीड टू एंश्योर दैट वी मस्ट साइट सेमिनल लिटरेचर, द ग्राउंडेड थ्योरीज और द बेसिक एस्टैब्लिश्ड रिसर्च एंड दोज ऑथर्स, रादर सेमिनल ऑथर्स. इनके साइट आप देखिएगा, अभी भी आप गूगल कर सकते हो थ्योरी ऑफ प्लांट बिहेवियर आइजन के 1984. उसके बाद फिर इसके एक्सटेंडेड वर्जन्स है 1987, 1991, 94, 97, 2002 एंड सो ऑन. इतने सारे इसके वैरिएंट्स आए. अगर आप आइजन सर के साइटेशंस देखते हो तो साइटेशंस आर इन लैक्स ओनली फॉर अ सिंगल पेपर. सच काइंड ऑफ पेपर्स आर कंसिडर्ड एज सेमिनल स्टडीज. और अगर हम लोग ऐसे पेपर साइट कर रहे हैं जिसको कोई साइट ही नहीं कर रहा है, सिर्फ हम लोग ये जो पहले साइटेशन उनको दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमारे क्वालिटी पे, हमारे रिसर्च की क्वालिटी पे भी एक क्वेश्चन मार्क लगना स्वाभाविक है. तो वी मस्ट साइट at least Scopus Q1, Q2 indexed journals. Yani it indicates what we have referred to. What idea means from whom we have derived ideas. So if you have been deriving ideas from lesser known authors, then what about your own credibility was? That is why it is more important to cite only to the seminal authors. Na? Another statistic which was being cited by that ESC Emerald, 40% articles are rejected due to formatting issues. What basically formatting issues are? जब कभी भी हम लोग स्कोपस के लिए पब्लिकेशन के लिए जाते हैं, एक तो ये समझना चाहिए हम लोगों को कि स्कोपस के जो सबमिशंस होते हैं दे आर मोस्टली द पोर्टल सबमिशंस, और पोर्टल सबमिशन में देयर आर स्ट्रिंजेंट ऑथर गाइडलाइंस. और आप देखेंगे उनकी वेबसाइट पे ऑथर गाइड नाम से एक पीडीएफ होती है, एंड यू नीड टू कंप्लाई विद दोस पर्टिकुलर रिटन गाइडलाइंस कि आपको मैन्युस्क्रिप्ट कैसे तैयार करनी है. एंड इफ यू आर इग्नोरिंग दैट एंड हरीडली यू हैव बीन सबमिटिंग इट, ऑब्वियसली इट विल बी रिजेक्टेड बिकॉज इट इज नॉट इन द फॉर्मेट प्रिस्क्राइब्ड बाय योर सिलेक्टेड जर्नल. And this is sheer ignorance, na. And if you are not complying with the standard, this is the basic standard, na. And if you are not complying with this basic standard, obviously आपका पेपर कितना भी अच्छा हो वो stand नहीं करेगा वहाँ पे. This rejection का एक सबसे बड़ा कारण, that is your paper, your manuscript is not in the format. Another reason which is being highlighted by EIC Emerald, ये जो मैं pointers दे रहा हूँ, कुछ pointers तो उन्होंने दिए हुए हैं, उनके हिसाब से सिलेंट ग्रामेटिकल मिस्टेक्स एंड पंक्चुअलिटी मिस्टेक्स, दिस इज वन ऑफ द सीरियस रीजंस कि जिसकी वजह से हम लोग मैन्युस्क्रिप्ट आउट एंड आउट रिजेक्ट कर देते हैं. Another one, writing skill is another issue, and even I am more convinced with this. This is according to Elsewhere. Even I am more convinced with, because there are writing styles. कि मैन्युस्क्रिप्ट जब हम तैयार करते हैं तो वो मैन्युस्क्रिप्ट में जो वोकैब होता है वो वोकैब उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से ही उनको लगता है. एंड इफ वी आर यूजिंग दो स्लैंग्स एंड इनफॉर्मल वोकैब
while writing our manuscript, then obviously वो level पे stand नहीं करती है. Another reason 30% articles are disrejected due to plagiarism issues. You must be knowing that कि ये तो इतना ज़्यादा strict हो चुका है. Yesterday only one of the EICs had called me. उनका अपना plagiarism checking का जो software है उसमें कुछ issues आ रहे थे, तो उन्होंने मुझे मेरे logins और credentials मांगे थे, तो मैंने उनको दे दिए. And he was complaining that EIC, उन्होंने कहा कि सर ये क्या करें ये जनरेशन का, एआई से जैसे कि वैसे लेते हैं, कॉपी पेस्ट करके भेजते हैं सर. जब मैं प्लेगरिज्म चेक करता हूँ सर 90% प्लेगरिज्म, कैन यू बिलीव दैट? क्योंकि आज ना प्लेगरिज्म जो चेकर्स आ रहे हैं उसमें एआई कंटेंट डिटेक्शन का फीचर है, शायद आपको मालूम नहीं होगा. प्लेगरिज्म चेकर्स में हम लोग बात करते हैं इन दिनों टर्निटिन जो स्कोपस वाले यूज करते हैं, और पीएचडी थीसिस के लिए ड्रिलबिट नाम से सॉफ्टवेयर चल रहा है. हमारी यूनिवर्सिटी भी ड्रिलबिट ही यूज कर रही है, पर खास करके टर्निटिन जो है पेड वर्जन, इंस्ट्रक्टर वर्जन में बोल रहा हूँ, जो पेरेंट वर्जन होता है उसमें एआई कंटेंट डिटेक्शन का फीचर है, और वहां पे तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है. अगर आप बोल रहे कि मैंने जेमिनी से ही ले लिया इफ सपोज, तो भी वहां पे वो डिटेक्ट करता है बॉस. यानी आपका खुद का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है, अगेन फिर से इट इज अ क्रेडिट वर्दी. उसकी वजह से कल ही मेरी जो बात हो रही थी, ही वाज कंप्लेनिंग रादर कि यार कैसे समझाएं इन लोगों की, ऐसे नहीं करते पेपर. तो मुझे रिजेक्ट करते वक्त सर बड़ा ये लगता है, पर क्या करें सर कि पूरा कॉपी पेस्टेड, हाउ कुड वी एक्सेप्ट इट? Then this is one of the serious reasons, wrong selection of journals. मुझे अगर आज टाइम मिलता है डेफिनेटली मैं थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेट भी करने की कोशिश करूंगा. लेट अस से चलिए जाते हैं कोर इशू में. स्ट्रेटेजी फॉर सक्सेसफुल पब्लिकेशन, कीप योर पेपर्स एंड पेन्स रेडी. थोड़े मीनिंगफुल डिस्कशंस करेंगे. चेक करते हैं जो सबसे पहले ना, मुझे क्या लगता है स्कोपस में जो लोग पब्लिश कर रहे हैं, ऐसे कितने लोग हमारे कांटेक्ट में, एक बार चेक कर लेना चाहिए. मैं बोल रहा हूँ सीरियस वाले. हाँ, सीरियस वाले इसलिए क्योंकि स्कोपस में पब्लिकेशन के दो प्रकार होते हैं, एक होता है पेड ऑप्शन, दूसरा होता है अनपेड ऑप्शन. और खास करके जो अनपेड में सक्सेसफुली कर पा रहे हैं वो लोग जेन्युइन जर्नल्स बोल रहा हूँ मैं. जेन्युइन का मतलब क्या हो गया? ऑब्वियसली इसमें सेटिंग वाले भी कुछ जर्नल्स है कि पैसे लेके छाप लेते हैं, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ. कुछ ऑथर्स होंगे भी कि जिनके क्रेडिट पे शायद 15 स्कोपस होंगे, पर वो एक भी जेन्युइन नहीं है, तो वो फिर कुछ काम का नहीं, ऐसा मुझे लगता है. वो ठीक है कंप्लायंसेस के लिए वगैरह ठीक है, पर अगर आप कहीं प्रीमियर इंस्टीट्यूशन में अप्लाई कर रहे हो, तो जो रिसर्चर की स्कोपस सक्सेसफुली पब्लिश करने वालों की जो कम्युनिटी है, उनको ये नाम मालूम है कि कौन से जर्नल सेटिंग वाले हैं और कौन से जेन्युइन है. ये हम लोगों को पता है जो हमेशा स्कोपस में कर रहे हैं. और आपको लगता है कि मेरा स्कोपस हो गया पैसे देके, तो ये किसको पता चलने वाला है? ऐसा नहीं होता है. वो कुछ स्पेसिफाइड जर्नल्स हैं जिसके नाम लेने के बाद ही हम लोगों को पता चल जाता है कि वो पैसे देके किया हुआ है. तो वी शुड नॉट डेल इनटू दैट. वन जेन्युइन स्कोपस पब्लिकेशन वर्थ hundreds of this kind of paid publications, I will reckon it as. एक भी अगर genuine है ना, you stand out in a crowd, take it from me. So let us see. मैंने कहने का मतलब ये था कि आप सबसे पहले तो ये चेक करना चाहिए कि जो genuinely स्कोपस पब्लिकेशन कर रहे हैं, ऐसे कितने लोग हमारे कॉन्टैक्ट में हैं. अगर ऐसे कुछ लोग आपके कॉन्टैक्ट में हैं, तो आपके लिए ये जर्नी थोड़ी आसान है, बिकॉज दैट पर्टिकुलर फेलो विल वर्क एज ए मेंटर फॉर यू इफ ही अलाउज यू. लेट अस चेक. अगला रीजन मुझे क्या लगता है, जो मैंने यहाँ पे मेरे ये यहाँ से आगे जितने भी पॉइंटर्स है, ये मेरे खुद के पॉइंटर्स है, आउट ऑफ माय एक्सपीरियंस. मैंने जो देखा है अपने यहाँ, जब तक टारगेट्स नहीं आते हैं हम लोग पेपर लिखने का काम शुरू नहीं करते. खास करके अप्राइजल्स का समय, उस वक्त रश होता है कि जैसे अभी मार्च में अप्राइजल्स होने, तो दिसंबर जनवरी में मेरे यहाँ बहुत सारे फोन्स आना शुरू होता है कि सर स्कोपस का टारगेट है, कैसे करें. ये 2 महीने में होता नहीं, मैं इतना ब्लंटली बता देता हूँ. ये मुझे क्या लगता है एक गलती जो हमारे यहाँ की पूरी कम्युनिटी कर रही है, कि हम लोग स्कोपस में क्या चल रहा है बिना समझे हम लिखने की प्रोसेस में आ रहे हैं. मेरा कहना क्या है कि आप स्कोपस में क्या पब्लिश हो रहा है वो अगर चेक करते हो और उस स्टैंडर्ड तक पहुंचने की कोशिश करते हो, तो ये जर्नी और ज्यादा मीनिंगफुल हो जाती है. माय मैसेज ओवर हियर इज ट्राई टू रीड बिफोर राइटिंग. ट्राई टू रीड बिफोर राइटिंग. मैं मेरा खुद का केस बता रहा हूँ. मैंने 2002 में CPN मेरा ज्वाइन किया नागपुर में MBA डिपार्टमेंट, एंड दैट टाइम अराउंड आई वाज ए एविड रीडर. मैं बहुत ज़्यादा अच्छा एकेडमिक्स पे तो नहीं था, पर मेरा मार्केटिंग सब्जेक्ट था उन दिनों, अभी भी है, पर अभी आई एम नोन मोर फॉर रिसर्च. तो उन दिनों मैं मार्केटिंग पढ़ाता था, और
मेरे एक सीनियर प्रोफेसर थे हमारे कॉलेज में, तो उनको मालूम था कि मुझे पढ़ना अच्छा लगता है. मैं मोस्ट ऑफ द टाइम आई यूज्ड टू स्पेंड इन लाइब्रेरी ओनली, कॉलेज लाइब्रेरी. So one fine day I was sitting in the library only and I was just checking on some journals and magazines that college has subscribed to. And then that senior professor walked up to me and he said that ki, Ashish, if you are a marketing professor, then you must read the Indian Journal of Marketing. And that is one of the coveted journal that time or even today as well. So on his suggestion, I started reading those particular journal issues quite regularly and I become a fan. जब मैंने पहली बार, just to share with you, जस्ट मैं पहली बार जब वो जर्नल के आर्टिकल्स पढ़ा, 4 ही आर्टिकल्स आते हैं एक जर्नल में उसमें, तो जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो जो सब्जेक्ट मैटर था वो तो समझ में आ रहा था. वंस इट कम्स टू स्टैटिस्टिक्स ना, तो मैं थोड़ा सा डिटैच हो जाता था उससे कि यार ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही है. जो शुरू का इंट्रोडक्शन लिटरेचर ये वहाँ तक का पार्ट, आरएम का थोड़ा बहुत पार्ट समझ में आ जाता था, पर जब स्टैटिस्टिक्स आता था तो लगता था यार ये क्या चल रहा है, ये कौन सी दुनिया के लोग हैं ये क्या चीज़ें तो कभी देखी नहीं, सुनी नहीं. मीन्स आई यूज्ड टू फील लाइक एलियन और वंडरलैंड में हूँ मैं कहीं, और ये चीज़ मुझसे कभी जमेगी ही नहीं. ओवर द पीरियड में टॉकिंग अबाउट प्रबंधन जर्नल, इंडियन जर्नल ऑफ मार्केटिंग. प्रबंधन उसी पब्लिकेशन हाउस का जर्नल है. प्रबंधन इज मोर HR एंड OB ओरिएंटेड. Okay. Yes, sir. उनका प्रबंधन जो है वो पहले इंडियन जर्नल ऑफ HRM नाम से आता, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट नाम से आता था. नाउ इट इज बीइंग नोन एज प्रबंधन. सेम पब्लिकेशन हाउस का है. इनके कुछ 3 जर्नल स्कोपस इंडेक्स है. इंडियन जर्नल ऑफ मार्केटिंग जो मैं अभी बोल रहा था आपको, फाइनेंस वालों के लिए इंडियन जर्नल ऑफ फाइनेंस है और HR वालों के लिए प्रबंधन है. तो मैं उन्हीं जर्नल्स का रेफरेंस दे रहा हूँ. तो मैंने ये पहली बार, सॉरी, ओके, तो मैंने उस वक्त 2002-2003 में ये पहली बार पढ़ा था एंड मुझे बहुत अच्छे लगते थे वो. तो पर वन फाइन डे यानी वो आदत हो गई थी वो रेगुलरली पढ़ने की. फिर मैंने सोचा कि यार आशीष, अपना एक आध पेपर अगर इसमें आ जाए तो मजा आ जाएगा. यानी दैट टाइम अराउंड आई डिसाइड, माइंड तैयार कर लिया था कि आई मस्ट फीचर इन दिस पर्टिकुलर जर्नल. एंड जस्ट टू शेयर विथ यू, ये सपना सच होते होते 2022 आ गया. बस लगभग 20 साल की जर्नी रही है. पर one thing was very determined कि I must feature in Indian Journal of Marketing. I decided, I started reading. I used to understand the format, the reporting conventions, the language, everything. आर्टिकल में कितने सेक्शंस होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट कितना बड़ा होता है, यानी ये अंडरस्टैंडिंग मुझे धीरे धीरे आना शुरू हो गया. एंड वन फाइन डे आई डिसाइडेड कि नाउ आई मस्ट गो फॉर इट. आई स्ट्राइव्ड वेरी हार्ड, मेनी टाइम्स आई face rejections, but still I didn't give up. I keep on continuing it and in eventually 2021 precisely, COVID के समय की बात है, I successfully got featured into it and I'm very proud to say that I've been regularly featuring in most of the journals of this particular publication house. I got around 3 publications in Indian Journal of Finance. Prabandhan recently featured into. Now it becomes much easier for me कि हमारा अभी तो मेरी टीम का टारगेट ही होता है कि हमारा एक पब्लिकेशन साल में इस पर्टिकुलर हाउस में जाए. बट हाउ डिड आई अचीव दिस? फर्स्टली आई रीड, आई अंडरस्टूड एंड देन आई ट्राइड. मुझे 20 साल लग गए, पर आप लोगों को 20 साल नहीं लगने वाले, बिकॉज मुझे तो यार मीन मोड वेरिएंस से ही शुरुआत करनी पड़ी ना. आप लोगों को वो प्रॉब्लम्स नहीं है. उस वक्त जो SPSS तो था भी नहीं है. SPSS जो मैंने पहला ट्रेनिंग प्रोग्राम लिया नागपुर में वो तो 2010 में लिया. SPSS नागपुर में मैंने पहली बार देखा, एक ट्रेनर आए थे 2007 में देखा मैंने. एंड फिर आई डिसाइडेड नाउ आई मस्ट लर्न SPSS एंड देन आई स्टार्टेड preparing for SPSS and in 2010 I took the first workshop of SPSS. आज आपके लिए इतना ज़्यादा स्ट्रगल नहीं है. Resources are available, such kind of workshops have been happening quite regularly. So आपके लिए shortcuts है इतना ज़्यादा. और importantly you have got mentoring as well ना. There are people around you to help you. So part apart, my first clear message, if you really wish to feature in a genuine Scopus Index journal, then you must start reading what has been published over there. You must understand the formats and the standards prevailing over there.
मैं बात ये कर रहा हूँ कि वहाँ पे जो जैसे मैं स्टैटिस्टिक्स जो मैं इंडियन जर्नल ऑफ मार्केटिंग में पढ़ा, मुझे उस वक्त पता चला ना यार कि मल्टीपल रिग्रेशन करना होगा आशिफ, उसके सिवा नहीं पहुंच सकते। देन आई स्टार्टेड रीडिंग कि यार रिग्रेशन क्या होता है, मुझे नहीं समझ में आया। फिर मुझे पता चला कि यार जब तक कोरिलेशन नहीं पढ़ोगे तब तक रिग्रेशन नहीं पता चलेगा। ये मुझे पता चला जब मैं 1 महीना रिग्रेशन पढ़ा ना, फिर मैंने कोरिलेशन पे वापस आया, फिर कोरिलेशन पढ़ने लग गया तो पता चला नहीं यार कोवरेंस पहले पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद ही कोरिलेशन पता चलेगा क्या है। ऐसा करते करते मैं वापस स्टैंडर्ड डिविएशन और स्टैंडर्ड एरर तक पहुंचा ना। फिर मैंने एक दिन सोचा कि नहीं यार आशीष ऐसा नहीं है, शुरू से ही शुरू करते हैं। जो किताब यहाँ से शुरू होती है पेज नंबर 1 से लेके आखिरी पेज तक जितना समझ में आए। Then I started reading vigorously. Levin Rubin was my favorite. William Zickman was my favorite then. इनको तो मालूम नहीं कितनी बार पढ़ा होगा वो किताबों में। अभी मेरा लिखा हुआ ज्यादा है, जो मेरे पास कॉपीज है इनकी हार्ड कॉपीज, वो पेपर वो किताबों की जो मार्जिन्स होती है आजू बाजू की, उसमें मैंने ज्यादा लिख के रखा है जितना ओरिजिनल कंटेंट उन्होंने वो ऑथर्स ने प्रेजेंट किया हुआ पार्ट अपार्ट। सो दिस इज माय फर्स्ट मैसेज टू यू ऑल। अनदर इम्पॉर्टेंट मैसेज, you need to work in a team. Single author publication is a rare phenomenon. Rather, it is actually, you won't find single author papers in Scopus. And this is where we are actually committing some mistake. हम लोग चाहते हैं कि मैं ही सब कुछ करूँ, वैसा नहीं होता है। मैं आपको पॉइंटर्स भी दे रहा हूँ अभी 2-3 स्लाइड्स के बाद, कि एक पेपर लिखने के लिए बहुत सारी चीजें करनी होती है और सब लोग ना, यानी एक आदमी के पास वो पूरी की पूरी चीजें होना, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल चीज। मैं ट्रेनर हूँ इसलिए मैंने पूरे एरियाज ही कवर किए हैं, पर एज ए इंडिविजुअल जैसे हम लोग जो है बिगिनर अभी इस पर्टिकुलर फील्ड में, उनके लिए ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल चीज है। आप क्या क्या पढ़ोगे, क्या क्या सीखोगे, और इतनी डायनेमिक चीज है ये, you will not be able to follow each and everything, and you will not be able to do justice with each and every component of Scopus manuscript. That is why we need to believe in collaboration. You need to network with people. You form a team. You form a team. अगर आप मुझे पूछते हो कि स्कोपस में नंबर ऑफ ऑथर्स कितने होते हैं, तो एवरेज नंबर ऑफ ऑथर्स इन स्कोपस इंडेक्स जर्नल इज 5. एवरेज बोल रहा हूँ मैं। रिसेंटली आई केम अक्रॉस वन ऑफ द मैन्युस्क्रिप्ट व्हिच वाज हैविंग 19 ऑथर्स, 19 ऑथर्स, एंड द नंबर ऑफ पेजेस इट वाज कंस्टिट्यूटिंग वाज अराउंड 20 पेजेस। 20 पेजेस लिखने के लिए 19 ऑथर्स आर देयर, मींस ऑल द 19 मस्ट हैव कंट्रीब्यूटेड समथिंग ना। और हम लोग अगर सिंगल ऑथर करके जाना चाहेंगे तो इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल बॉस। यू नीड टू कोलैबोरेट। मैं और ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स दे रहा हूँ इस पर्टिकुलर सेंस में। So you need to network with the people who have been regularly featuring in Scopus, because you need some hand holding. बिना गाइडेंस के वहां तक पहुंचना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। उससे भी बड़ी बात मैं बता रहा हूँ आपको कि आपने बहुत अच्छा पेपर बना भी लिया, आप अगर जा भी रहे हो स्कोपस में और आपके स्कोपस में अगर फुटप्रिंट्स नहीं है, इसका मतलब क्या है, आपने इससे पहले स्कोपस पे पब्लिकेशन नहीं किया है। इट हैपेंस टू बी योर फर्स्ट पेपर जो स्कोपस में आप पब्लिश करना चाहते हो, तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी है, क्योंकि स्कोपस पे ये चेक करते हैं आपका ऑथर प्रोफाइल क्या है, यानी आप कितने पानी में हो। अगर आपका स्कोपस प्रोफाइल ही डेवलप नहीं हुआ है तो वहाँ पे स्टैंड करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट चाहता है। फिर शॉर्टकट क्या है, you collaborate with a person who has already featured in Scopus and who has been regularly featuring in Scopus. He has got his own credentials in the form of I10 index उसका अगर है तो ये चीजें, आपका I10 इंडेक्स बनेगा ही नहीं ना। I10 इंडेक्स का मतलब क्या है, आपके एक मैन्युस्क्रिप्ट को जब तक 10 साइटेशंस नहीं मिलते हैं आपका I10 इंडेक्स जनरेट नहीं होगा, और जब तक ये I10 इंडेक्स जनरेट नहीं होगा you will badly struggle standing in genuine Scopus journal. इसके लिए आपको लगता है कोलैबोरेशन, एक ऐसा ऑथर जो इन्फ्लुएंशियल है और स्कोपस जिसको जानते हैं, वो लोग तो प्रोफाइल चेक करते हैं ना बस सिंपली आपका। अगर स्कोपस का प्रोफाइल आपका बना ही नहीं और वहां पे कुछ है ही नहीं प्रोफाइल में, तो ये जर्नी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगती है। इसलिए आपको एक ऐसे आदमी के साथ या 2-3 ऐसे लोगों के साथ जुड़ना होगा जो स्कोपस में सक्सेसफुली फीचर हुए हैं, और मुझे लगता है ये एक शॉर्टकट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे मैं बोल रहा था कि अपने यहाँ माहौल नहीं है, तो माहौल हम लोग वेट नहीं कर सकते कि ये माहौल कब बनेगा। मुझे लगता है हम लोगों ने ये माहौल क्रिएट करना चाहिए। मुझे लगता है हम लोगों ने खुद कुछ इनिशिएटिव
करके यू नीड टू बी पार्ट ऑफ रिसर्चर्स कम्युनिटी। कि आज कम्युनिटीज है, इवन वर्चुअल कम्युनिटीज आर देयर। फेसबुक पे बहुत सारे ऐसे फोरम्स है, इवन रिसर्च गेट एकेडमिया, ये फोरम्स रिसर्चर कम्युनिटी के फोरम है। आर यू ए पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर कम्युनिटीज? क्योंकि वहां पे जो डिस्कशंस चलते हैं, दिस डिस्कशंस आर altogether different. They are at, they have been happening at a very different level. Try to be a part of those worthy discussions, boss. The same time, कुछ WhatsApp के अगर worthy groups है, you must be a part of, so that you could at least get some information कि what is being happening around us. हमारे यहाँ आसपास कोई अगर बड़ा स्पीकर आ रहा है रिसर्च से रिलेटेड, तो वी मस्ट बी अवेयर ऑफ ना कि यार कौन आ रहा है अपने यहाँ पे। रिसेंटली जस्ट टू शेयर विथ यू, वी आर सो ब्लेस्ड दिस डेज। आई एम अभी है नागपुर में, और वहाँ पे सतीश कुमार नाम से फैकल्टी ने पिछले साल ज्वाइन किया, एंड आई वाज सो हैप्पी व्हेन आई केम टू नो, बिकॉज वन ऑफ माय फ्रेंड्स इज देयर इन आई एम नागपुर एंड ही इज बीइंग doing PhD from there, and he rang me up and he told me that Satish Kumar sir has joined us, and I was knowing him and I listened to him for several times, and I feel so proud that particular fellow is in our close vicinity, that is in Nagpur only, and we are so blessed that we could hear him. But incidentally this is not happening. एक साल हो गया अभी, तो मैंने उनको सुना ही नहीं नागपुर में, because हम लोगों को नागपुर में ये नाम ही तो नहीं मालूम कि ये बहुत बड़ा नाम हमारे नागपुर में ही है. How would you able to know unless you participate in some researchers community, and that too very worthy researchers community, so that we can walk up to these particular people and they could guide us and they could provide us complete hand-holding during this particular journey. और उनका नाम भी आपके पेपर में है, तो योर जर्नी बिकम्स मच इजियर। स्कोपस पब्लिकेशन उनके नाम से ही हो जाएगा ना, इवन तो यू आर द फर्स्ट ऑथर एंड ही इज द लास्ट ऑथर, फिर भी उनके नाम से बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है। ऐसे यू नीड टू बी अ पार्ट ऑफ रिसर्चर कम्युनिटी। बड़े लेवल के कॉन्फ्रेंसेस जो है वहां पे जाके बैठे, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पेपर लिख के पब्लिश ही करना चाहिए या फिर जाके प्रेजेंट ही करना चाहिए, एटलीस्ट जाके अटेंड तो करो, बिकॉज वहां पे जो चर्चा होती है ना, उससे पता चलता है कि हम लोग कितने पानी में है। वहां पे जो डेलीगेशंस आते हैं ना, उससे ना एक मोटिवेशन तो बनता है, समा बनना शुरू हो जाता है, एंड वी शुड नॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ दैट पर्टिकुलर एटमॉस्फियर। इतनी बढ़िया वाइब्स आते हैं ना, जो वाइब्स शायद नागपुर में मैंने देखी नहीं। एक बार आप अच्छे लेवल के कॉन्फ्रेंस में जाके बैठो तो वाइब्स आना और मोटिवेशन मिलना शुरू हो जाता है। और एक चीज मैं स्कोपस वालों की खासियत बता रहा हूँ, ये लोग ना मेथड्स पे काम करते हैं। व्हाट आर दिस मेथड्स? जैसे मैं बता रहा था कि बेसिक स्टैटिस्टिक्स पे काम नहीं होता है, दे वर्क मोर ऑन एडवांस स्टैटिस्टिक्स एंड दे आर मोर स्पेशलाइज्ड एरियाज, यू कैन से। जैसे इन दिनों स्कोपस में गारंटी बन चुकी है कि स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग पे अगर आपने काम किया है तो इट इज गारंटिंग योर पब्लिकेशन। और मैं ये भी बता पा रहा हूँ आपको कि स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग के वर्कशॉप्स रेगुलरली हो रहे हैं। मैं अभी बात कर रहा हूँ, मैं तो लगभग हर हफ्ते में एक फ्लायर देख रहा हूँ कि स्ट्रक्चरल इक्वेशन का मॉडलिंग का वर्कशॉप कहीं ना कहीं हो रहा है, ऑनलाइन मोड में वीडियो लेक्चर्स मिल रहे हैं। मुझे क्या लगता है, वी मस्ट अंडरस्टैंड दिस डायनेमिक्स कि स्कोपस में क्या एक्सेप्ट हो रहा है। एक बंदे की केस में बता रहा हूँ आपको, मुझे मालूम है मैं थोड़ा स्ट्रेच कर रहा हूँ चीजों को, बट आई वांट टू शेयर माय एक्सपीरियंसेस, और ये शायद दूसरा कोई कर पाएगा। रिसेंटली एक बंदे से बात हुई थी, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि यार यू नीड टू बी पार्ट ऑफ रिसर्चर कम्युनिटी। मैं खुद इसलिए आपको बता रहा हूँ, एक पर्टिकुलर फोरम पे मैंने ज्वाइन किया था, एक वर्कशॉप एज ए पार्टिसिपेंट, नॉट एज ए स्पीकर। मैंने ज्वाइन किया था और उसमें कुछ चर्चा हो रही थी। सेशन होने के बाद जो क्वेश्चन आंसर्स और जो डिस्कशंस होते हैं उसमें चर्चा हो रही थी, एंड देयर वाज वन फेलो हु वाज टेलिंग हिज स्टोरी। उसने क्या बताया कि he tried his hands on many of the contemporary statistical methods. जैसे हम लोग एडवांस स्टैटिस्टिक्स की अगर बात करते हैं, he tried his hands on structural equation modeling and he realized that कि it is not his cup of tea. Structural equation modeling is too technical, too difficult. And I am happy, rather proud to say that मेरे अभी recent publication जो 5-6 हुए हैं, those all are same best. It is a guarantee. अगर आपका पेपर सेम का है तो वो पब्लिश होना ही है, एंड दिस इज व्हाट ऑथोरिटी के साथ बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे पिछले 5-6 पब्लिकेशन पूरे के पूरे स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग के थे और सक्सेसफुली वो पब्लिश हुए हैं। क्योंकि आज की डेट में स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग इंटरनेशनल रिसर्चर कम्युनिटी की बात करते हैं तो अभी कोविड के बाद ये जो परसेंटेज है ये फास्टली ग्रो हो रहा है। पर जब मैंने सीखा ये
इवन 1% लोग भी इसके साथ अवेयर नहीं थे, एंड आई लेवरेज्ड ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग। मैं जो एक्सपीरियंस बता रहा था वो बंदा बता रहा था कि उसने बहुत सारे वर्कशॉप्स किए स्टैटिस्टिक्स के, और एक वर्कशॉप के दौरान उसको पता चला कि यार कॉन्जॉइंट एनालिसिस नाम की कोई मेथड है, और वो उसको समझ में आ गई ठीक से, और उसको लगा कि यार ये चीज जमने लायक है और ये मुझे समझ में आई है। तो व्हाट ही डिड, उसने खुद ने सक्सेस स्टोरी बताई है। उसने एक पेपर लिखा कॉन्जॉइंट का, और पहले अटेम्प्ट में वो पब्लिश हो गया स्कोपस में, स्प्यूबल में। उसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया, अभी दूसरा कुछ तो आता नहीं। उसने क्या किया, उसके मेंटर को पूछा कि सर कॉन्जॉइंट तो सक्सेसफुली पब्लिश हो गया, अब क्या करूं, दूसरा तो मुझे कुछ आता नहीं है। उसके मेंटर ने कहा क्या प्रॉब्लम है, कॉन्जॉइंट का दूसरा पेपर लिख। उसको ये आइडिया ही नहीं, अच्छा यार चलो ऐसे भी हो सकता है। उसने कॉन्जॉइंट एनालिसिस पे एक फ्रेश थीम लेके फिर से एक पेपर लिखा, और फिर से रिजल्ट वही कि वो सक्सेसफुली पब्लिश हो गया विदाउट एनी हिंड्रेंस। ऐसा करते करते यू कांट बिलीव 55 publications he has got in his credit based only on conjoint analysis। मेरे कहने का मतलब क्या है, स्टैटिस्टिक्स बहुत सारा है, हम लोग कहाँ तक फॉलो करेंगे, कितना पैसा और कितना टाइम देंगे इस चीज को, जरूरत नहीं है। यू जस्ट स्टार्ट अटेंडिंग सच काइंड ऑफ प्रोग्राम्स, और ये प्रोग्राम में कोई एक तो चीज होगी जो आपको समझ में आई है ठीक से, बस उसके पीछे पड़ जाओ, वो चीज आप ग्रास्प कर लो, उसके ऊपर काम करो, सक्सेस मिल जाता है। और मैं तो एग्जाम्पल के साथ बताया। हम लोगों ने मेटा एनालिसिस पे एक पेपर लिखा था, दैट वाज माय, जो मैं बता रहा था आपको, इंडियन जर्नल ऑफ मार्केटिंग, दैट वाज माय फर्स्ट पेपर मेटा। इट इज अवेलेबल ऑन गूगल स्कॉलर एज वेल, स्कोपस Q2 इंडेक्स जर्नल। तो हम लोगों को बहुत तकलीफ हुई, टीम थी मेरी, हम लोग 3 लोग थे टीम में, पर मेटा एनालिसिस वाज ए वेरी नोवेल थिंग। और आपको मैं बता रहा हूँ, रिसर्चर कम्युनिटी अभी भी, इंटरनेशनल रिसर्चर कम्युनिटी वर्ल्ड की पूरी 1% लोग भी मेटा एनालिसिस जानते नहीं, और मैंने ऐसी चीज में हाथ डाल दिया था, इतनी ज्यादा टेक्निकल चीज। और दैट वाज माय फर्स्ट पेपर एंड दैट हैपेंड टू बी माय लास्ट पेपर, क्योंकि हम लोगों को 2 साल लग गए थे। मैं ट्रेनर था, इसलिए मैंने जिद पकड़ ली थी कि ऐसे कैसे नहीं जमता, मैं पीछे पड़ गया उसके और कर लिया। पर अभी अगर आप मुझे बोलेंगे कि सर मेटा तो आपको आता है, दूसरा पेपर लिखेंगे क्या, तो मैं बोलूंगा नहीं भाई वो टेक्निकल सी चीज है। मेरा कहने का मतलब क्या है, आप ना ये थोड़ा सा पार्टिसिपेशन बढ़ा दीजिए इस प्रकार के डिस्कशन में। मैं जो बोल रहा हूँ ये शायद वर्ड्स ही एलियन लग रहे होंगे आपको, और मैं ये बता रहा हूँ कि ऐसी चीजें ही पब्लिश होती है स्कोपस में। हमारे मैनेजमेंट के सेंस में मैं बात कर रहा हूँ कि आप किस चीज पे काम कर सकते हैं। मल्टी डायमेंशनल स्केलिंग नाम से कंसेप्ट है हमारे मैनेजमेंट में, MDS जिसको कहते हैं, मल्टी डायमेंशनल स्केलिंग। इज अ बास्केट ऑफ वेरियस टूल्स, और बहुत ही मजेदार बास्केट है, इतने बढ़िया इंसाइट्स आते हैं बस। और उसमें कॉन्जॉइंट एनालिसिस इज वन ऑफ द पार्ट्स। कॉन्जॉइंट एनालिसिस, क्लस्टर एनालिसिस एंड करस्पॉन्डेंस एनालिसिस, ये 3 चीजें जो ढासू चीजें हैं, एंड ये गारंटी हो जाती है आपके स्कोपस के पब्लिकेशन की। अभी बात ये है कि ये शायद पहली बार अगर हम सुन रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप नोट तो करके रख दो, और एक आपका मेंटर आपको अथॉरिटी के साथ बोल रहा है कि ये चीजें आती हैं आपको, तो पब्लिकेशन थोड़े से आसान हो जाते हैं। बस इसके पीछे पड़ जाइए, ट्रेनिंग करिए, यूट्यूब पे आज फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोस भी अवेलेबल है, स्टार्ट फॉलोइंग। किसी एक इफ सपोज आपको स्पीकर का नहीं समझ में आ रहा है, यूट्यूब पे वो भी फैसिलिटी है, आप तो 10 स्पीकर्स को सुन सकते हो, कोई कभी ना कोई तो चीज क्लिक हो जाएगी ना। बट वी नीड टू स्पेयर सम टाइम फॉर दिस स्पॉट, वी नीड टू अपस्केल अवरसेल्फ। हम लोग टी टेस्ट, जेड टेस्ट, पाई चार्ट, बार ग्राफ से यू कांट ड्रीम of achieving this kind of milestones. We need to come out of the group. ये जो मैं बात कर रहा था ना कि you need to be a part of the community. You need to sit and you need to conversate with such individuals who have been successfully publishing in Scopus. क्योंकि उनके डिस्कशन से जो इंसाइट आते हैं, आज मेरी टीम में जो है, ऐसा नहीं कि उनको बहुत बड़ा स्टैटिस्टिक्स आता है, they are with me only. That's the only qualification they have got. Getting me? और वो भी एक्सेप्ट करेंगे, ऐसे मैं नहीं बोल रहा, इवन दे विल एक्सेप्ट कि सर जितना बताते हैं हम लोग कर लेते हैं, हमारा पब्लिकेशन हो जाता है। मीन्स व्हाट आई मीन टू से, मीन्स यू शुड नॉट ज्वाइन विथ मी, आई एम टॉकिंग अबाउट यू नीड टू ज्वाइन विथ सच पीपल हु हैव बीन रेगुलरली डूइंग इट। यू नीड टू आइडेंटिफाई एट आउटसेट such particular fellows, even in your own college, even in your own staff room boss। आपसे बेहतर कोई एक बंदा तो होता है टेबल पे आपके स्टाफ रूम के, कि जो आपसे बेहतर है स्टैटिस्टिक्स और रिसर्च सेंस में, और उसके साथ थोड़ा भी डिस्कशन करोगे ना, वर्दी आइडियाज आ जाती है बस। एंड ट्राई टू ऑफर कोलैबोरेशंस, ट्राई टू बी अ पार्ट ऑफ अ टीम। आप पूछिए ना कि व्हाट कंट्रीब्यूशन आई कुड मेक, एंड फॉर दैट यू नीड टू हैव समथिंग टू टेल।
कि दिस वे आई कुड कंट्रीब्यूट। और वो वेज क्या होते हैं मैं जस्ट शेयर कर ही रहा हूँ अभी आपको। मुबीना मैडम 8 बज गए हैं, शाला कंटिन्यू। यस सर, 5-10 मिनट्स विल नॉट बी एन इशू, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि हमने थोड़ा सा लेट भी शुरू हुआ था, 5 मिनट तो ओके मुझे लगता है। और हम जो सुन रहे हैं एक्चुअली वो सब जानना ही है सभी को। आई होप एवरीबडी अग्रीज विथ मी, अग्री विद, यस, Ma'am, it's ऑलराइट, very informative session. यस यस ओके, वी मस्ट प्रोसीड। यस सर। ये जो मैं बात कर रहा हूँ कि स्कोपस में जो रेगुलरली पब्लिश करते हैं वो ऐसे क्या करते हैं कि वो सक्सेसफुली फीचर हो जाते हैं और हम लोग कहाँ कम पड़ रहे हैं। अनदर पॉइंटर इज ऑन योर स्क्रीन, दे आइडेंटिफाई मॉडल पेपर्स। मॉडल पेपर यानी क्या, मैंने मेरी शुरुआत ही यहाँ से की कि स्कोपस में जो रेगुलरली पब्लिश करते हैं वो स्कोपस में क्या पब्लिश हो रहा है वो पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, और वो पढ़ते वक्त सिलेक्टिव रीडिंग करते हैं और जो भी पढ़ते हैं वो वेस्ट नहीं होने देते। मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ। हम कितना पढ़ते हैं उससे ज्यादा रिटेंशन कितना करते हैं, उसको अप्लाई कितना करते हैं, उसका ही खेल है। आप बोलेंगे कि मैं एक साल में अगर 100 पेपर्स पढ़ रही हूँ पर आप उसमें से कुछ रिटेन ही नहीं कर पा रहे हो और ना ही अप्लाई कुछ कर पा रहे हो, तो मैं कहता हूँ कि बॉयस 100 पेपर पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप 10 पेपर ही पढ़ रहे हो, उसमें से कुछ क्लूज ले रहे हो और you are immediately putting those particular things in action, you are far better place boss according to me। आपको ना पढ़ते वक्त ये चेक कर लेना चाहिए कि इस पर्टिकुलर पेपर में ऐसी क्या चीज है जो मुझे मालूम नहीं थी, मुझे अभी पता चली है, एंड आई मस्ट यूज दिस पर्टिकुलर थिंग इन माय नेक्स्ट मैन्युस्क्रिप्ट। डू यू हैव सच काइंड ऑफ पॉइंटर्स? मैं क्या बोल रहा हूँ, जब हम पीडीएफ को सेव करते हैं तो पीडीएफ का जब आप लेबलिंग करोगे उसमें वो पॉइंटर ही डाल दीजिए कि व्हाई टू रेफर दिस पीडीएफ, अपने आप के लिए, कि रेफर दिस फॉर प्रिपेयरिंग रिसर्च मॉडल। आपको जब भी आपको लगेगा कि काम करना है, फर्स्टली यू विजिट दिस फोल्डर फर्स्ट एंड यू चेक कि हमारे पास इनपुट क्या है, एंड देन यू रेफर टू दोज इनपुट्स फर्स्ट एंड देन यू स्टार्ट कंसेप्चुअलाइजिंग योर ओन मैन्युस्क्रिप्ट। सो इससे ना बहुत ज्यादा हेल्प होती है। इवन आई मे साइट माय ओन एग्जांपल। रिसेंटली आई गॉट सक्सेसफुली फीचर्ड इन इंडियन जर्नल ऑफ फाइनेंस। पेपर अवेलेबल है गूगल स्कॉलर पे, फाइनेंशियल लिटरेसी का पेपर था। कपल ऑफ पेपर्स वी हैड रिसेंटली इन इंडियन जर्नल ऑफ फाइनेंस। और जो अभी फाइनेंशियल लिटरेसी का मैंने पेपर तैयार किया था, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल लिटरेसी का, मैं जब पहला पेपर लिख रहा था रिस्क एटीट्यूड के ऊपर था। इन दिनों मैं फाइनेंशियल बिहेवियर पे ज्यादा काम कर रहा हूँ, तो रिस्क एटीट्यूड का हमने पेपर जब हम लिख रहे थे तो दैट टाइम अराउंड आई वाज रीडिंग लिटरेचर। और मेरा खुद का रूल ये है कि मैं जब पेपर लिखता हूँ तो कम से कम 100 पेपर पहले पढ़ता हूँ और बाद में फिर अपना लिखता हूँ। ये मेरा खुद का रूल है अपने लिए। और आप बोलेंगे 100 पेपर के लिए इतना टाइम लगता है? नहीं, मैं सिलेक्टिव रीडिंग करता हूँ। मैं एट ए ग्लांस वो चेक कर लेता हूँ मेरे काम का है या नहीं है, और हर एक पेपर से मुझे क्या लेना है। मैंने सिर्फ स्क्रॉल करके भी ये आउट ऑफ हैबिट आ चुका है, आउट ऑफ एक्सपीरियंस आप बोलिए, 20-25 साल से ये जर्नी चल रही है। तो सिंपल एक ग्लांस लेने के बाद मुझे पता चल जाता है कि इसमें से क्या लेना है। तो दैट इज द स्पीड आई हैव अचीव्ड दिस डेज। So one fine day, I was studying literature for writing my first paper on risk attitude. I came across one particular paper which was based on financial literacy, and for the first time, I realized that financial literacy can be defined in two sets, subjective and objective. And that was the only paper where I could find that financial literacy is defined this way. And that particular author has prepared with a conceptual model, that is the research model. And I got in fancy with that particular model. And then I आइडेंटिफाइड दैट पर्टिकुलर पेपर और उसको मैंने मेरे दूसरे फोल्डर में सेव करके रखा कि रेफर दिस पेपर फॉर माय नेक्स्ट मैन्युस्क्रिप्ट। जब नेक्स्ट मैन्युस्क्रिप्ट की बात आई, मैंने वो पेपर लिया। इंसिडेंटली एल्सवेयर स्कोपस का Q1 जो सबसे टॉप लेवल मानी जाती है, वहां पे वो पब्लिश हुआ था। और मेरा सपना ये है, अभी भी है, आई कुडंट अचीव दिस, कि एल्सवेयर में मुझे स्कोपस Q1 में फीचर होना ही है। एंड विद दैट डिटर्मिनेशन एंड विद दैट इंटेंशन, मैंने वो वाला जो पेपर जो जहां तक मुझे पहुंचना है उसको मॉडल पेपर बना लिया। एंड विथ रेफरेंस टू दैट पर्टिकुलर मॉडल, वो ऑथर ने जो काम किया हुआ है उस काम को मैं और 2 स्टेप आगे लेके गया। उस पर्टिकुलर मॉडल को मैंने एक्सटेंडेड मॉडल के फॉर्म में और कुछ वेरिएबल्स ऐड करके थ्योरेटिकल सपोर्ट लेके मैंने और 2 लेवल ऊपर लेके गया। उसका जो सैंपल साइज था उससे 500 सैंपल्स ज्यादा पे मैंने काम किया, और उसका जो एनालिसिस था उसमें
और जो स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग उसमें किया गया था, और मैंने इस बार हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट जो स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग का बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स इशू है, I touched upon that particular issue for the first time in that particular manuscript only. इतना सब करने के बाद I was dead sure. Intentionally, I submitted that particular paper in that journal only, which was Elsevier Scopus Q1. मुझे लगा था कि it will stand there, but somehow within 3 days it was rejected. मैंने साइड भी किया था कि मैंने ये लिखा था उस पेपर में कि this particular research work is being influenced, highly influenced by the work of this, which is being featured in this journal. ये कवर लेटर में मैंने लिखा था. फिर भी वो मैन्युस्क्रिप्ट वापस आई. जब मैं कारण ढूंढ रहा था तो पता चला यार कि मेरा प्रोफाइल अभी तक वहां पे उनको लगता नहीं कि मैं स्कोपस Q1 वाला हूँ. ये तो ठीक है, नागपुर में मुझे पहचानते हैं लोग, पर शायद अभी वो लेवल पे वो पेपर स्टैंड हुआ नहीं. इंसिडेंटली 2-3 और जगह हमने ट्राई किया, एल्सवेयर एमराल्ड तक हम लोग गए, पर वो नहीं स्टैंड हुआ. और इंसिडेंटली फिर इंडियन जर्नल ऑफ फाइनेंस ने उसको कॉग्निजेंस लिया एंड दे पब्लिश्ड इट इन फर्स्ट अटेम्प्ट ओनली विदाउट मेजर रिविजन्स एंड ऑल. बट दिस थिंग्स हैपन. मीन्स मैं बात कर रहा हूँ कि आप पढ़ने की आदत रखते हो तो उसमें से सिलेक्टिव रीडिंग करके आप पॉइंटर्स लेके उसको आइडेंटिफाई कर देते हो कि इसके जैसा बनाना है, तो ये जर्नी थोड़ी सी आसान हो जाती है. ठीक है, मेरा एल्सवियर स्कोपस Q1 नहीं हुआ, पर इंडियन जर्नल ऑफ फाइनेंस जो अपने यहाँ नागपुर के बहुत सारे लेक्चरर्स का सपना है, जो मेरे लिए शायद रिग्रेट होगा कि मैं वहां तक ही पहुंच पाया, पर ये रिग्रेट यहाँ के बहुत सारी फैकल्टीज के लिए बड़ा सपना है. तो मैं ये इसलिए अचीव कर पाया हूँ क्योंकि वहां पे जो स्टैंडर्ड चल रहे हैं वो स्टैंडर्ड को ब्रिज करके मैं उसके ऊपर गया हूँ, इसलिए मैं वहां तक पहुंच पा रहा हूँ. इट बिकम्स मच इजी. चलिए आगे बढ़ते हैं. ये एक इम्पोर्टेंट पढ़ लो. मैं थोड़ा स्क्रॉल भी कर रहा हूँ, इट ऑलरेडी 8:11 ना, तो मैं थोड़ा सा सिलेक्टिवली ही अभी पॉइंटर्स दे रहा हूँ. जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस पर आ रहा हूँ मैं. दिस वन यू मस्ट अंडरस्टैंड, दे अंडरगो विगरस ट्रेनिंग. एग्जाम्पल्स के साथ ही बताऊँ, मैं मेरे खुद के एक्सपीरियंसेस से शेयर करने में बिलीव कर रहा हूँ. आज कोविड के दिनों की बात है, और कोविड में मैंने एक हैबिट बना ली थी. रोज शाम को 5-5:30 बजे मैं मेरे जैसे जो लोग हैं, लाइक माइंडेड पीपल, एकेडमिशियंस, और जो मेरे जैसे ग्रूमिंग में बिलीव करते हैं, उनसे रोज ही मैं खुद फोन करके बात किया करता था कि आप हाउ यू हैव बीन यूटिलाइजिंग दिस लॉकडाउन पीरियड एंड हाउ यू हैव बीन कीपिंग ऑक्यूपाइड योरसेल्फ मीनिंगफुली. तो वो डिस्कशन से मुझे बहुत ज्यादा फर्क पड़ा. आप यानी आशीष लिंगे का प्रोफाइल या आशीष लिंगे का रिसर्च का अंडरस्टैंडिंग बिफोर और आफ्टर कोविड, मैं तो अपने आप को डिफाइन करूंगा तो ये 2 सेंस पे करूंगा कि कोविड से पहले का और कोविड के बाद का. एंड कोविड के बाद का इज एन इम्प्रोवाइज वर्जन, आई बिलीव, एंड क्रेडिट गोज टू दोस पर्टिकुलर फोन कॉल्स. एंड ड्यूरिंग दोस फोन कॉल्स ओनली वी गॉट कोलैबोरेशन, वी कुड write that meta-analysis paper, we had a very genuine publication. Along with that, one of my colleagues, rather my younger brother these days, बलदेव काकड़े, you must be knowing him. तो मेरी एक दिन उनका ही रादर मुझे फोन आया. वो मुझे गुरु मानता है, तो ही प्रपोज में कि सर एक पेपर लिखते हैं. तो मैं बात कर ही रहा था कि आप हाउ यू आर ऑक्यूपाइड दिस डेज. तो उसने बताया मुझे कि मालवीय मिशन के कुछ जो वर्कशॉप्स है वो मैं रेगुलरली अटेंड कर रहा हूँ रिसर्च से रिलेटेड. तो मैंने उसको कहा कि यार कोई अच्छा वर्कशॉप आता है तो मुझे इन्फॉर्म कर, अपन दोनों साथ में करते हैं. एंड दैट हैपेंड टू बी द मेटा एनालिसिस वर्कशॉप बाय बहुत ही बड़े, मैं जिनको गुरु भी मानता हूँ और बहुत बार इंटरेक्शंस भी हो रहे हैं इन दिनों भी अभी मेरे. तो उनका वर्कशॉप हमने किया एंड दैट वाज द मोमेंट कि हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग जो पेपर लिखने जा रहे हैं इट विल बी मेटा एनालिसिस पेपर. अभी वो पहला वर्कशॉप हमने किया और उसके बाद वो जो एक्सपीरियंस रहा और खास करके जो इंटरेक्शंस होते थे सेशन के बाद, लगभग 1 घंटा सेशन चलता था और 1 घंटा इंटरेक्शन चलते थे. और वहाँ पे तो पूरी दुनिया से पार्टिसिपेंट्स थे, यानी एवरी कंट्री यू कैन से, वहाँ से रिप्रेजेंटेशंस थे. और उनके जो चर्चा हो रही थी, मुझे लग रहा था यार रिसर्च में मैं हूँ. मुझे पता चला कि मैं कोई नहीं हूँ. यार अपने से बहुत 30 मार का लोग बैठे हैं. दैट फीलिंग आई हैव गॉट फॉर द फर्स्ट टाइम अटेंडिंग दोस पर्टिकुलर वर्कशॉप. मैंने देखा ऐसे करते करते बैक टू बैक, यू वोंट बिलीव, आपको एग्जैजरेशन भी लगेगा शायद,
मैंने और बलदेव ने बैक टू बैक 32 वर्कशॉप्स किए, और कुछ तो ऐसे थे कि हम लोग सवेरे एक वर्कशॉप में थे, दोपहर में एक वर्कशॉप में और शाम को एक वर्कशॉप में। पर इस चीज ने हमारा ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया। अभी उसमें प्रॉब्लम ये थी कि आपको भी मालूम है यार, कोविड के वक्त सभी के सैलरीज के वक्त इश्यूज थे, हम लोगों की भी सैलरीज हुई नहीं थी, बट आई वाज द ओनली वन हमारे इंस्टीट्यूशन में कि हु हैड बीन लैविशली स्पेंडिंग ऑन ऑल दिस पर्टिकुलर थिंग्स। मैंने उस वक्त 2 लाख रुपए खर्च किए अपने आप को ग्रूम करने के लिए। तो अपने यहाँ ये माइंडसेट भी मुझे कम लगता है। इन्वेस्टमेंट ऑन योरसेल्फ मींस इन्वेस्टमेंट ऑन एजुकेटिंग, अपग्रेडिंग योरसेल्फ, दिस इज नॉट ए एक्सपेंडिचर कॉस्ट, दिस इज एन इन्वेस्टमेंट जो बहुत ज्यादा मल्टीफोल्ड होके आपके पास वापस आती है। बट वेरी फ्यू ऑफ अस देयर टू डू दिस, एंड खास करके जब आपके पास फाइनेंशियल क्रंच हो और आप लैविशली इन चीजों पे पैसे खर्च कर रहे हो, इस प्रकार का माइंडसेट वैसे कम दिखता है। अभी जो मैं एक्सपीरियंस बता रहा हूँ बहुत ज्यादा काम का है। बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस का वर्कशॉप मुझे थोड़ा बहुत आता था पहले, पर कोविड के दिनों में हमको पता चला एक बहुत बड़ी फैकल्टी है, उनका एक वर्कशॉप था, राधा मैम करके, उनका वर्कशॉप मैंने किया और मुझे वो जरा कुछ समझ में नहीं आया। और बलदेव ने तो हाथ ऊपर कर दिया कि ये इस जन्म में तो मेरे से होने से रहा। तो फिर मुझे ज्यादा कुछ समझा नहीं था उन मैडम का, तो मैंने दूसरा एक वर्कशॉप और अटेंड किया बिब्लियोमेट्रिक का। एंड व्हाट आई कुड सो नोटिस दिस, मैं अभी जो बोल रहा हूँ बहुत काम की चीज है। ये पहले वाले वर्कशॉप में मेरे साथ लगभग अगर 100 लोग थे। दूसरा वर्कशॉप जब मैं बिब्लियोमेट्रिक के लिए गया, इमीडिएटली था वो दूसरे किसी फैकल्टी का, दूसरे किसी ऑर्गेनाइजेशन का। तो वहां पे मैंने देखा लगभग 30-40% जो रिसर्च स्कॉलर मेरे साथ उस पर्टिकुलर वर्कशॉप में थे वो यहाँ पे भी दिख रहे थे मुझे। नाम तो हमारे ग्रुप्स भी थे व्हाट्सएप के। मुझे पता चला कि यार मैं अकेला ऐसा सोचने वाला नहीं हूँ कि एक का नहीं समझा तो ठीक है दूसरे का करते यार। और मैंने देखा यार, फॉर द फर्स्ट टाइम आई रियलाइज कि लोग कितना सीरियसली ले रहे हैं इस चीज को, पैसा भी और टाइम भी खर्च कर रहे हैं कि ठीक है एक का पर्सपेक्टिव नहीं समझ में आया दूसरे का ट्राई करते हैं, तब तक हो रहा। और आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने बैक टू बैक बिब्लियोमेट्रिक के 6 वर्कशॉप्स किए, एंड दैट टाइम आई वाज अलोन। बलदेव ने तो गिव अप कर दिया था, मेरा दूसरा एक पार्टनर था, वो तो कहा यार सर ये जमेगा ही नहीं मेरे से। तो बट आई वाज क्वाइट होपफुल, मुझे थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग था, मैं देख रहा था पर्सपेक्टिव्स क्या आ रहे हैं अलग अलग। तो मैंने बैक टू बैक 6 वर्कशॉप्स की, और 6 वर्कशॉप में मुझे दिखा कि मेरे साथ अर्लियर वर्कशॉप में जो लोग थे वो रिपीटेटिवली मुझे यहाँ पे भी दिख रहे हैं। और अपने यहाँ पे ये कल्चर मुझे अभी तक दिखा नहीं है कि आप इतनी हद तक उसको फॉलो कर रहे हो जो स्कोपस में। और मैं देख रहा हूँ रिसेंटली इट हैपेंड कि मैंने एक पब्लिकेशन किया था, स्कोपस का ही था, तो मुझे एक कॉम्प्लीमेंट आया व्हाट्सएप पे, स्टेटस पे रखा था, तो वहां से मुझे कॉम्प्लीमेंट आया। देन मैंने थैंक यू वगैरह बोला उनको, और मैंने उनको पूछा भी कि हम लोग कहाँ मिले हैं, आपका नंबर तो सेव है पर मुझे याद नहीं आ रहा हम लोग कहाँ मिले हैं। तो उसने बताया कि सर मैं ये पर्टिकुलर वर्कशॉप में हम लोग थे साथ में। तो 3-4 दिन बाद मुझे वो बंदे का एसएमएस आया कि सर यू मे कॉन्ग्रेचुलेट मी एज वेल बिकॉज आई गॉट सक्सेसफुली फीचर्ड इन स्कोपस। इज व्हाट आई मीन टू से कि जो लाइक माइंडेड पीपल है वो सक्सेसफुली अपीयर हो रहे हैं। एंड ये जो बैक एंड में चलता है ना, दीज आर ऑल अनटोल्ड स्टोरीज, एंड ये स्टोरीज कभी कोई नहीं बताएगा आपको। मैं तो सामने आके बता रहा हूँ ये कि जो स्कोपस में सक्सेसफुली फीचर हो रहा है, जेन्युइन स्कोपस की बात कर रहा हूँ मैं, उसके पीछे ये सब चलता है which no one is taking the cognizance of। और मैं कह रहा हूँ आपको कि you need to prepare your mindset accordingly कि you need to upgrade yourself। पर हर एक चीज हम लोगों को करनी नहीं है, पर आपको ये तो समझ में आना चाहिए कि यार मैं कौन सी चीज के लिए बना हूँ, मैं कौन सी चीज को लेके कंफर्टेबल हूँ। जब तक आप 4 चीजें करके देखेंगे तब तक आपको पता कैसे चलेगा। That is why you need to take initiatives and you need to voluntarily participate in at least online workshops। and you people are so blessed कि आप दुनिया के अच्छे ऑथर्स को, स्पीकर्स को घर में बैठ के हैविंग सिप ऑफ कॉफी, आप आपके लिविंग रूम में बैठ के इतने बड़े बड़े लोगों को सुन पा रहे हो, वो भी 500-700 रुपए में। यार इससे बेहतर तो मैंने दुनिया ही नहीं देखी रिसर्च को लेके, बिकॉज मैं तो एक एक लाइन के लिए स्ट्रगल किया ना। आई नो द इम्पोर्टेंस ऑफ एवरी लाइन विच आई हैव बीन प्रीचिंग टुडे, बट दिस स्ट्रगल इज नॉट फॉर यू। यू पीपल आर वेरी वेरी ब्लेस्ड। जितने भी बड़े ऑथर्स हैं, जस्टिन पॉल, ये नाम आपको शायद मालूम होगा, ये बादशाह कहा जाता है रिसर्च का। जस्टिन पॉल, आप नाम नोट करके रखिए, बस प्रोफाइल चेक करिएगा। इनको महीने के पास से साइटेशंस आते हैं, इतना बड़ा है ये। और आपको शायद ताज्जुब होगा कि नागपुर के सिम्बोसिस ने इनको कीनोट स्पीकर करके बुलाया था।
यानी दुनिया हमारे पास आ रही है, वो हम लोगों को दुनिया में जाने की जरूरत। जो बंदा यूएस में कहीं बैठा है, मेरा ड्रीम था कि ये बंदे को कब सुनूंगा, मैं कब देखूंगा। And what I could say, this guy has been, delivering keynote address in Nagpur. तो इससे बड़े तो मैंने माहौल ही नहीं देखा बॉस। The only thing is कि you need to take initiative. दुनिया स्पीडीली जा रही है, हम लोग थोड़ा सा लैग कर रहे हैं इन सब चीजों को लेके, डायनामिक्स समझने में शायद। और जो मैं बता रहा था आपको, मेरे यहाँ से भी वर्कशॉप करने वालों की तादाद बहुत ज्यादा है, पर अगर आप मुझे पूछते हो कि सर आपके यहाँ से जिन्होंने वर्कशॉप किए उनके स्कोपस के पब्लिकेशंस कितने हुए, तो मेरे पास शायद कुछ आइसोलेटेड केसेस ही हैं। और वो केसेस ऐसी है कि जिन्होंने पढ़ के डायरेक्टली अप्लाई किया है, बाकी लोग पढ़ के भूल जाते हैं। दैट इज द मेजर प्रॉब्लम बॉस। ये जो माहौल अभी 5 दिन से आपका बना हुआ है, मुझे लगता है ये 5 दिन में से कोई एक तो लाइन पकड़ लीजिए, और वो लाइन आपको 5 साल तक मोटिवेट कर रही है, अगर उसको लेके अगर आप कुछ कर पा रहे हो, तो मुझे लगता है ये वर्कशॉप बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है आपके लिए। पर 5 दिन में आपने बहुत सारा पढ़ लिया है, पर उसको आप अप्लाई नहीं कर रहे हो, तो इसका कोई सेंस ही नहीं बन जाता है, क्योंकि इट विल बी अ शेयर वेस्ट ऑफ टाइम देन। पर स्कोपस में जो करते हैं, दे आर मोर फोकस, दे आर मोर प्रोसीडिंग विद देयर प्लान्स कि ये मैंने सीखा है तो आई मस्ट अप्लाई इट। So this is a peculiar characteristic of those particular authors who have been featuring regularly in Scopus. They upgrade, they apply. That is more important. Application is more important, what I believe. आप अपग्रेड कर रहे हैं, अपस्किल हो रहे हैं, पर उसको यूज नहीं कर रहे, तो वो भूल जाते हो आप। देन वहाँ और क्या है, ये स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग वगैरह इसके वर्जन्स आते हैं, स्मार्ट पीरियड सॉफ्टवेयर के वर्जन मेरे सामने 1 से मैंने चालू किया काम, अभी 5 पे हम लोग आ चुके हैं ऑलरेडी। इतने सारे वैरायंट्स इसके आ रहे हैं, तो अगर हम इसको यूज नहीं करेंगे, अपग्रेड नहीं करेंगे, तो वी कांट अचीव दैट माइलस्टोन ना। मैं कुछ और पॉइंटर्स देता हूँ, फिर रुकते हैं हम लोग। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग पिक्चर, एज यू कैन सी, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी वन। As you can see, there is a long queue which is hungry to publish, but this particular counter is quite empty. No one is standing over here because it is requiring hungry to do what publishing requires. Efforts लेने के लिए शायद बहुत कम लोग तैयार हैं, पर स्कोपस में पब्लिकेशन बहुत सारे लोगों को करना है। और मैं तो इसको इस तरीके से डिफाइन करूंगा, स्कोपस पब्लिकेशन इज नॉट ए इवेंट, इट्स अ प्रोसेस, एंड इट इज अ वेरी एंड्योरिंग प्रोसेस। इट्स अ लॉन्ग जर्नी। अगर आप मुझे पूछेंगे, मैंने बताया ना मेरा खुद का एग्जांपल, मुझे 20 साल लग गए ना, आपको उतना नहीं लगने वाला है। पर आप 2 साल भी सस्टेन कर लेते हो तो ये चीजें आसान है, बट प्रोसेसेस आर ऑलवेज पेनफुल। अब कोई भी स्किल ले लीजिए, आप अगर इवन अपने आप की हेल्थ भी मेंटेन करना चाहते हैं, इफ यू वांट टू रिमेन फिजिकली फिट, देन अगेन इट इज अ प्रोसेस बॉस। आपको सवेरे उठना होगा, इच्छा ना होते हुए भी आपको 1 घंटा एक्सरसाइज करनी होगी। प्रोसेसेस आर ऑलवेज पेनफुल बॉस। एंड वो सिमिलर एनालॉजी स्कोपस के सेंस पे भी, इट्स ए वेरी पेनफुल प्रोसेस, पर इसके जो रिजल्ट्स है ना, इससे आपको जो चाहते हैं आप, आपका एक ड्रीम होगा ना, बीइंग एन एकेडमिशियन, दैट ऑल ग्लोरी यू वुड अचीव थ्रू दिस पर्टिकुलर प्रोसेस ओनली। मैं एक 5 मिनट बात करूंगा, इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स देता हूँ, फिर हम लोग ओपन करेंगे डिस्कशंस के लिए। कि पब्लिक स्कोपस पब्लिकेशन के सेंस में मैंने जो आइडेंटिफाई किए 2 इश्यूज है कि हम लोग क्यों स्ट्रगल कर रहे हैं। एक है क्वालिटी ऑफ द पेपर और दूसरा है पब्लिकेशन के चैलेंजेस। जैसे मैंने खुद का एग्जांपल बताया कि मेरे पेपर की क्वालिटी बहुत अच्छी थी ना, एल्सवेयर के लिए जो मैं गया था, पर स्टिल भी पब्लिकेशन में ये प्रॉब्लम है, उसके अपने चैलेंजेस है। क्योंकि क्या है, जैसे मैं जो पेपर लेके गया था एल्सवेयर के स्कोपस Q1 में, वहां पे व्हाट आई रियलाइज, आशीष लिंगे है, दूसरा कहाँ से है तो इंडिया से है, इंडिया में कहाँ से है तो नागपुर से है, नागपुर में कहाँ से तो RTMNU से है, RTMNU में कौन से कॉलेज से तो CPN बेरर। और इन सब के प्रोफाइल को अगर आप चेक करते हो तो इन सब का स्टैंडिंग कहीं वैसे दिखता नहीं है ना। यही अगर मैं नागपुर IIM लिखा होता तो वो पेपर पब्लिश हो गया होता। यानी क्या प्रोफाइल भी मैटर करता है स्कोपस पब्लिकेशन, यानी पब्लिकेशन के भी अपने चैलेंजेस है। एक तो क्वालिटी ऑफ द पेपर मेंटेन करना, ये पहला चैलेंज मुझे लगता है, और उसके बाद दूसरा बड़ा चैलेंज है पब्लिकेशन के इशू। मैं दोनों को क्विकली एड्रेस करता हूँ, फिर रुकते हैं हम लोग। पहले क्वालिटी की बात करते हैं, हाउ टू अचीव क्वालिटी। सो यू नीड टू डेवलप रिसर्च स्किल्स। मैं पॉइंटर दे रहा हूँ फटाफट।
एक जो बड़ी चीज स्कोपस में स्टैंड करती है वो है आपके पेपर की नॉवेल्टी। आपके पेपर में अगर नॉवेल्टी है तो योर पेपर, उसमें भले बहुत बड़े लेवल का स्टैटिस्टिक्स आपने यूज नहीं किया पर वो स्टैंड होगा। इसके लिए आपको आपके फील्ड में जो कंटेम्पररी चीजें चल रही जो लेसर नोन है, शायद जब कोविड का पीरियड चल रहा था उस वक्त एचआर के लोगों ने मून लाइटिंग जो है यानी 2-3 जगह जॉब करना एक साथ, वो चीज उस वक्त बहुत नई थी। उसके ऊपर उस वक्त जिस किसी ने भी लिखा वो स्कोपस तक पहुंच गया, और ऐसा भी नहीं कि बहुत बड़े लेवल का स्टैटिस्टिक्स यूज किया, बिकॉज दैट वाज द नॉवेल्टी, दैट वाज द न्यू टर्म इन ट्रेंड दैट टाइम अराउंड। उसी के साथ साथ हमने शुरू किया था काम, बट वो इनकम्प्लीट रहा। वो था नोमोफोबिया का स्कोप, यानी कोविड के वक्त ये बहुत ही नया कंसेप्ट था। हमने डेटा कलेक्शन तक हो गया था, फिर राइटिंग के लिए मुझे ही टाइम नहीं मिल पा रहा था तो वो रह गया, पर अदरवाइज that was a very promising topic. So you need to identify such contemporary issues which are not addressed yet properly. Such kind of novel ideas usually stand in Scopus index journals. सेकंड चीज जो मुझे लगती है कि आप रिसर्च कर रहे हो तो यू मस्ट हैव अंडरस्टैंडिंग अबाउट रिसर्च, जिसमें आपको लिटरेचर सर्च करते आना चाहिए। जैसे कि इस पर्टिकुलर वर्कशॉप में कल शायद सुमित सर ने आपको बताया भी होगा, हाउ टू सर्च लिटरेचर यूजिंग एआई टूल्स एंड ऑल। उसके साथ साथ डेटाबेसेस होते हैं, हाउ टू कंसेप्चुअलाइज योर टॉपिक, हाउ टू आइडेंटिफाई योर रिसर्च गैप्स, देन ऑब्जेक्टिव्स, हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करना। सबसे इंपॉर्टेंट बात कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क जो स्कोपस पे देखी जाती है, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, ये 2 चीजें होती है जो अगर साउंड है तो स्कोपस पब्लिकेशन आसान है। क्वेश्चनर डिजाइन करना, स्केल, खास करके स्टैंडर्डाइजेशन का जो पार्ट है स्कोपस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, स्केल स्टैंडर्डाइजेशन, जो अपने यहाँ स्किल अभी भी लैक करते हैं रिसर्च स्कॉलर्स। उसके साथ साथ आपका डेटा कलेक्शन, क्योंकि स्कोपस में 1000 के नीचे का सैंपल साइज स्टैंड नहीं करता है, तो 1000 के ऊपर अगर आपको डेटा गैदर करना है तो ये पीएचडी से भी 3 लेवल ऊपर का काम हो गया ना। अब देखेंगे हमारे यहाँ जो पीएचडी चल रही है 200-300 के सैंपल में तो खत्म कर रहे हैं बॉस, जहाँ स्कोपस में कहीं स्टैंड ही नहीं होती ये चीजें। स्कोपस में आपके सैंपल साइजेस थोड़े से वर्दी होने चाहिए। 1000 के ऊपर जो मैंने अपने आप के लिए रूल बनाया है मेरे स्कोपस वाले, उसमें 1000 के ऊपर ही हमने ऑपरेट किया, तब जाके तो वो चीजें स्टैंड हो रही है ना वहाँ पे। उसके बाद सेमिनल पेपर्स का जो मैं उल्लेख कर रहा था, आपने उनको साइट किया हुआ है क्या? आपको वो सेमिनल पेपर्स आपके फील्ड के मालूम है क्या? तीसरी चीज एडवांस स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, कौन सी टेस्ट कब यूज करनी है, स्कोपस में कौन सी टेस्ट एक्सेप्ट हो रही है, जो पेपर्स पब्लिश हो रहे हैं उसमें भी एक क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिटिकल टेक्निक्स होती है। इन दिनों क्वालिटेटिव बहुत ज्यादा जोरों शोरों में चल रहा है, एनवीवो, एनकैप्चर, ऑरेंज, ये कुछ सॉफ्टवेयर है जो मैंने हाल ही में अपग्रेड किए हुए हैं, और इनको अपना एक स्टैंडिंग है, एक अलोकेशन है स्कोपस में। जस्ट टू शेयर विथ यू, स्कोपस में 2 स्टैंडर्ड्स, देन 2 प्रकार के पेपर कहलाते हैं। पेपर के टाइप स्कोपस के हिसाब से 2 ही होते हैं, एक होता है इंपेरिकल पेपर, दूसरा होता है रिव्यू पेपर। और रिव्यू पेपर के लिए जो अलोकेशन है वो है 30%। हर 100 पेपर में 30 पेपर्स जो है वो रिव्यू पेपर या क्वालिटेटिव पेपर्स पब्लिश होते हैं, और 70% पेपर आपके एम्पिरिकल होते हैं। अगर आप बिगिनर है तो मैं कहूँगा यू शुड गो विथ एम्पिरिकल, वहाँ पे पब्लिकेशन के चांसेस ज्यादा होते हैं। मैं थोड़ा हरीडली कर रहा हूँ, अदरवाइज आई कुड टॉक मच ऑन दिस पर्टिकुलर इश्यूज, बट स्टिल लेट मी गिव यू सम क्विक ग्लिम्सेस। देन स्किल टू हैंडल वेरियस सॉफ्टवेयर, बहुत सारे इश्यूज है स्कोपस में। एक तो स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर जैसे SPSS, जैमो या R, पाइथन, देयर आर सो मेनी सच सॉफ्टवेयर्स बॉस। Then using electronics databases like Scopus, WebOp Science, Springer Nature, Taylor and Francis, Elsewhere, Science Direct, so many are there, ProQuest is there. इसका अंडरस्टैंडिंग होना, एक तो पहली बात हमारे रीजन में अवेयरनेस अभी धीरे धीरे आ रहा है। मैं बहुत ज़्यादा विगरसली काम कर रहा हूँ हमारे रीजन में इस पर्टिकुलर चीज़ को लेके, थोड़ा बहुत अवेयरनेस आया, बट स्टिल 80% ऑफ द रिसर्च स्कॉलर दे आर स्टिल not aware about what these are, electronic databases, and how to use these particular databases for writing and publishing papers. स्टैंडिंग है स्कोपस में। आपके मेटा एनालिसिस का पेपर जिसके लिए डेटाबेसेस आपको लगते हैं, या फिर आपके जो थीमेटिक एनालिसिस के पेपर्स है जिसके लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेसेस लगते हैं, कंटेंट एनालिसिस है जिसके लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेसेस लगते हैं, इन ये सब पेपर स्टैंड होते हैं। पर अपने यहाँ अभी तक इन चीज़ों को लेकर अवेयरनेस नहीं है, इसलिए हम लोग वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे हैं। दैट्स द थिंग। देन रेफरेंस मैनेजमेंट टूल, इसमें मेंडले अभी एल्सवेयर का है तो ऑब्वियसली मेंडले मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, अदरवाइज जोटरो एक अच्छा सॉफ्टवेयर मुझे लगता है। और पेड में अगर आपको जाना है तो एंडनोट नाम से एक सॉफ्टवेयर आता है। मैं इसलिए बता रहा हूँ, मैं समराइज करूंगा, इसलिए मैं ये क्यों बता रहा हूँ कि हम लोग क्या प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे मैं जो बात कर रहा था ना, मैं ये क्यों दिखा रहा हूँ आपको सबको, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप ये सब तैयारी करो, मैं ये बता रहा हूँ कि ऐसी कुछ चीजें होती है।
मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इतना सारा पसारा है, इसमें से आपको क्या जमता देखो, हर चीज के पीछे भागो ही मत, और ये आप करने बैठोगे ये जिंदगी कम पड़ेगी इतना सब। मैं ट्रेनर हूँ इसलिए मैंने हर एक चीज एक्सप्लोर कर ली है, पर मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपको कि आप हर एक चीज, मैं बोल रहा हूँ आप जब कोलैबोरेशन किसी को ऑफर कर रहे हैं कि यार आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ योर टीम, मुझे भी बहुत सारे फोन आते, मेरा उनका यही क्वेश्चन होता है कि इन व्हाट सेंस यू कुड कंट्रीब्यूट, तो फिर वो क्लूलेस हो जाते कि सर व्हाट यू आर टॉकिंग, आप जो बोलेंगे वो करेंगे ना सर। ऐसा नहीं होता, यू शुड कम अप विथ योर ओन आइडियाज ना, कि सर आई एम वेरी गुड एट जनरेटिंग साइटेशंस एंड रेफरेंसेस, आई एम वेरी गुड एट पोर्टल सबमिशन प्रोसेस। अब यू शुड टॉक सम मीनिंगफुल ना, कि सर प्लेगरिज्म मुझे चेक करना आता है, मैं प्लेगरिज्म रिमूव भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। These are considered as valuation contribution। ये भले लगते मिनिस्क्यूल है, इसको तैयार करने में शायद 1 हफ्ता लगेगा, पर you are significantly contributing in a team। तो what is your contribution? आपको इसमें से क्या जमता है एक बार चेक तो करो, वो डेवलप करो एंड ऑफर योर कैंडिडेचर टू ए पर्टिकुलर टीम, देन यू विल बी एक्सेप्टेड इन अ टीम ना। इवन इफ आज आप बोल रहे हैं कि मुझे कोलैबोरेशन में काम करना है, बट इफ यू आर नॉट एबल टू डिफाइन व्हाट कंट्रीब्यूशन यू विल बी एबल टू मेक, आप ये नहीं बोल सकते मेंटर को कि सर आप जो बोलेंगे वो मैं करूं, ऐसे नहीं होता बॉस। आपको ये सब एरियाज है, मैं आपको एक्सपोजर दे रहा हूँ, इसमें से आपको जो जम रहा है 4-5 चीजें आपको आनी चाहिए। अगर आपको लगता है किसी कोलैबोरेशन का पार्ट बनना है तो इसमें से कुछ चीजें आप तैयार करिए। आपकी स्क्रीन पे है, मैं फिर से बता रहा हूँ आपको 2-3 चीजें। एक आरएम का अंडरस्टैंडिंग आपको कितना है, ये वाली चीजें। इसमें से आपको क्या आता है, ये जो पॉइंटर आपको दिख रहे हैं 8-9 पॉइंटर्स, इसमें से व्हाट यू आर गुड एट, आर यू गुड एट एनी ऑफ द थिंग्स, यू आर वेलकम इन अ टीम बॉस। देन सॉफ्टवेयर हैंडलिंग में आपके पास स्टैटिस्टिकल नॉलेज नहीं है, ठीक है, लीव इट टू द स्टैटिस्टिशियन ना। आप मेंटर के पास दूसरा कोई स्टैटिस्टिशियन होगा ना, अगर आपको नहीं जमता है छोड़ दीजिए ये चीज, पर आप कुछ तो लेके आइए ऑन द टेबल्स। तो बाकी जो सॉफ्टवेयर्स है आपके इस पर्टिकुलर सेंस में, यू मे डेवलप योरसेल्फ। ग्रामर चेक करना, प्लेगरिज्म चेक करना, पोर्टल सबमिशन की प्रोसेस, एआई टूल्स जो अभी ये वर्कशॉप चल रहा है इसमें से जो अक्वायर किए हैं, इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस से सबमिशन की पूरी प्रोसेस होती है, कैन यू एबल टू डू दैट। और वो टीम में ये लोग चाहिए होते हैं, क्योंकि जो मेंटर होता है, जो लीडर होता है, ही इज कंसेप्चुअलाइजिंग द थिंग, टेक्निकली वो बहुत गुड है, पर उसको सपोर्टिंग हैंड्स लगते हैं कि वो, जैसे मेरे जैसा आदमी, आई कांट अफोर्ड टू स्पेंड माय वर्दी टाइम ऑन सच दिस मिनिस्क्यूल इश्यूज। तो मेरे टीम में जो लोग हैं, मैं उनको बोलता हूँ कि भाई साइटेशन रेफरेंसेस तू जनरेट कर लेना, प्लेगरिज्म तू चेक कर, पैराफ्रेजिंग तू कर, बाकी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं यू जस्ट लीव इट टू मी, आई विल टेक केयर ऑफ ऑल दिस थिंग्स पर्टिकुलर। बट यू शुड डेवलप इनिशियली, मैं बिगिनर के सेंस में बात कर रहा हूँ, कि यू शुड बी एबल टू डेवलप सच काइंड ऑफ स्किल्स। Then another issue, understanding writing and presentation of a paper। आपको फॉर्मेट मालूम है क्या, प्रोटोकॉल्स मालूम है क्या स्कोपस के, ऑथर गाइडलाइंस आपने कभी पढ़ी है क्या स्कोपस की, उसमें क्या लिखा होता है। खास करके मैं तो ये और एक चीज कहूंगा कि जो कोई भी स्कोपस में पब्लिकेशन कर रहा है उसके कांटेक्ट में आइए और उनको पूछिए कि सर आपने जब पेपर सबमिट किए थे तो आपको रिव्यूज आए थे, मैं वो पढ़ना चाहता हूँ या पढ़ना चाहती हूँ। वो रिव्यू से जो इंसाइट्स आएंगे ना, आपको पता चलेगा कि गलतियां कहाँ पे हो रही है। बस आप कम से कम 5 रिव्यूज पढ़ लीजिए, यानी एक पेपर के लिए 3 रिव्यूअर के रिव्यूज आते हैं, और आप 5 पढ़ रहे हो 5 पेपर के, यानी 15 रिव्यूअर्स के आप अगर रिपोर्ट पढ़ रहे हो, तो यू विल रियलाइज कि कुछ मेजर इश्यूज होते हैं जहाँ पे गलतियां हो रही है, उसी के ऊपर रिविजन्स आ रहे हैं। तो दीज आर योर एरियाज की जहाँ पे आप थोड़ा सा डेवलप कर सकते हो, एंड यू विल बी वेलकम, हैप्पीली वेलकम इन द टीम if you understand this particular dynamics। along with your writing skill, English अच्छी है, you are a major contributor in a team boss। मैकेनिक्स ऑफ राइटिंग, डॉक्यूमेंटेशन का फॉर्मेटिंग आप बोलिए, मेनी थिंग्स आर देयर। देन सबमिशन रेडी, जैसे मैं बता रहा था। मैं दूसरे सेंस में आ रहा हूँ, challenges in publication, and then we'll quickly wind up another couple of minutes। Kindly bear with me। So we need to understand dynamics prevailing in a scopus in the form of, जैसे मैं बता रहा था आपको, रिव्यू पेपर या empirical पेपर। 30 to 70% ये रेशो है। इफ यू आर अ बिगिनर, गो विथ एम्पिरिकल पेपर। और लिखने के लिए आसान जो है वो है रिव्यू पेपर, समझने के लिए, लिखने के लिए आसान है। इसके 6 टाइप्स आते हैं, मैं क्विकली बता देता हूँ रिव्यू पेपर के। नरेटिव रिव्यू, एनालिटिकल रिव्यू, बिब्लियोमेट्रिक रिव्यू, सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू, मेटा एनालिसिस और कंसेप्चुअल। टोटल 6 रिव्यूज होते हैं। आपको इसमें से कौन सा आता है? स्टैंड जो करता है, कंसेप्चुअल रिव्यू स्टैंड करता है, एनालिटिकल रिव्यू स्टैंड करता है स्कोपस में, बिब्लियोमेट्रिक स्टैंड करता है, एसएलआर और मेटा। और मेटा अगर किया है तो इट इज अ गारंटी कि वो स्कोपस में होगा ही होगा।
पर मुझे मालूम है कि आप में से जो बहुत सारे लोग अभी यहाँ पे ये नाम ही पहली बार सुन रहे होंगे कि अच्छा रिव्यू पेपर के भी 6 प्रकार होते हैं। यहाँ से हम लोगों को शुरुआत है बॉस, स्कोपस में ये सब चल रहा है। इंपेरिकल पेपर ये हम लोग जो पीएचडी कर रहे हैं उसका बाप बोलिए ना आप, हम लोगों को 20 पेजेस लिखने हैं, पर इंपेरिकल पेपर ये पीएचडी के 3 गुना ऊपर के लेवल का काम होता है, दैट टू विद अटमोस्ट डेडिकेशन एंड सिंसियरिटी, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। देन दिस यू मस्ट अंडरस्टैंड पेड वर्सेस अनपेड। मैं बहुत बड़ी चीज बता रहा हूँ कि स्कोपस में जाने का तरीका, अगर आपने क्वालिटी अचीव कर लिया, आपको लगता है कि पेपर क्वालिटी वाला है, जैसे मैंने भी शुरू में ट्राई किया ना कि मैं एल्सवेयर में जो फ्री ऑफ कॉस्ट पब्लिकेशन करा देते हैं एमराल्ड के जर्नल्स है, इसमें पेड अनपेड समझ लेते हैं पहले। कुछ स्कोपस के जेन्युइन जर्नल Q1 Q2 में ऐसे बहुत अच्छे जर्नल्स हैं कि जो एपीसी लेते हैं। एपीसी का मतलब है आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्जेस, वो फीस होती है जो रिव्यूअर के लिए जाती हैं और जो आपका स्कोपस में अपलोडिंग वगैरह होगा उसके लिए वो फीस लेते हैं, उसको एपीसी कहा जाता है। नथिंग रॉन्ग विद पेइंग दैट एपीसी। दूसरा जो पेड का फॉर्म है वो होता है कमीशन या एजेंट्स, जो मैं डिस्करेज करूंगा क्योंकि उसमें गारंटी नहीं है कि वो कितना जेन्युइन होगा। और दूसरा ये जो जर्नल्स है जहाँ पे पैसे लेके हो रहा है वो जर्नल बहुत ज़्यादा स्टैंड नहीं करते। हाँ, कंप्लायंसेस के लिए वगैरह ठीक है, पर आपका प्रोफाइल अगर बिल्डअप करना है, जेन्युइन आपको कुछ अगर रिकॉग्निशन चाहिए तो वो फिर उससे नहीं आता है। दूसरी एक चीज जो मुझे रियलाइज हुई, आई मस्ट शेयर दिस थिंग विथ यू। मैंने उनको जो फाइनेंशियल लिटरेसी का पेपर बोला एल्सवेयर से तो वापस आ गया था 3 दिन में। उसके बाद मैं गया एमराल्ड में, जो मेरा दूसरा सपना था कि यार मुझे एमराल्ड में फीचर होना ही है, और वो भी Q1 में। एमराल्ड है तो Q1 ही है, नो डाउट अबाउट इट। Q2 में बहुत कम है, Q3 Q4 में तो है ही नहीं एमराल्ड के जर्नल, यानी इतना तगड़ा वो हमारे मैनेजमेंट के लिए तो सपना है वो। इवन माय ड्रीम इज कि आने वाले समय में ये होने वाला है, एल्सवेयर और एमराल्ड में पहुंचूंगा ही मैं पक्का। उसका शॉर्टकट भी, शॉर्टकट इन द सेंस मुझे डायनामिक्स पता चलना शुरू हो गया है। मैंने वही पेपर फिर एमराल्ड में कुछ जर्नल्स आइडेंटिफाई किए थे, वहां पे सबमिशन किया, 2-3 जर्नल से वापस आया। फिर मुझे पता चला कि यार फाइनेंशियल लिटरेसी का मैं काम कर रहा हूँ विदर्भ में, विदर्भ यानी इंडिया है, तो क्यों ना मैं इंडियन बेस्ड जो एमराल्ड के जर्नल है उसमें जाऊँ। फिर मैंने स्टडी उस पर्टिकुलर डायरेक्शन से करना शुरू कर दिया। एंड व्हाट आई रियलाइज, आई मस्ट शेयर दिस विथ यू, और आप भी थोड़ा सा इसको गौर से सुनेंगे। जितने भी IIMs है एक्सक्लूडिंग नागपुर, जितने भी IIMs हैं उनके खुद के पब्लिकेशंस है, और वो सब स्कोपस इंडेक्स है, और IIMs के सभी के कोलैबोरेशंस एमराल्ड के साथ है। यानी मैं आपको ये बता रहा हूँ जो मुझे समझने में शायद बहुत साल लग गए, मैं आपको 2 मिनट में बता रहा हूँ कि आपको अगर एमराल्ड तक पहुंचना है, स्कोपस Q1 Q2 बोल रहा हूँ मैं, बहुत अच्छे लेवल के जर्नल, टॉप लेवल के, अगर आपको वहां तक पहुंचना है तो शायद IIM आपका एक अच्छा रास्ता है। IIM की जो कॉन्फ्रेंसेस होती है, इवन नागपुर में भी हो रही है, हर साल होती है। IIM में जो कॉन्फ्रेंसेस होती है उसके जो पब्लिकेशंस होते हैं वो स्कोपस में ही जाते हैं, पर वो सिलेक्टेड होते हैं। यानी क्या, आपको पेपर की क्वालिटी अचीव करना जरूरी है, पर आपको एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है अगर पेपर की क्वालिटी अच्छी है तो वहां से गेटवे मिल जाता है। दूसरी एक चीज, अगर कॉन्फ्रेंसेस नहीं हो रही है तो भी IIM अक्रॉस द ईयर ये सबमिशंस ले रहा है। आज भी आपका पेपर अगर रेडी है, आप किसी भी, इवन मैंने जो सबमिट किया था IIM रांची और ट्रिची, ये 2 जगह मैंने सबमिशन किया था, और एमराल्ड वाले एपीसी लेते हैं जो इंडियन करेंसीज में लगभग जाती है 2.5 लाख रुपए। और अगर आपका पेपर अच्छा है, अगर आप IIM के गेटवे से सिलेक्शन हुआ है आपका, तो फिर ये जो 2.5 लाख का पेमेंट है, IIM विल बेयर दिस पर्टिकुलर पेमेंट ऑन योर बिहाफ। दिस इज अनदर डायनामिक्स, गेटिंग मी? यानी what we should strive for achieving quality. अगर वो stand करती है, then government is there and these all big stalwarts in India are there to take care of your financial issues. तो वहां से हो जाता है। मैं तो कोशिश कर ही रहा हूँ, पर मुझे ये जो समझ में आया वो I thought I must share it with my colleagues and friends and peers in my region. स्कोपस के क्वार्टर शायद आपको मालूम होंगे, Q1 Q2 Q3 Q4। अगर आप बिगिनर है तो फिर यू शुड कीप एन आई ओवर हियर। मैं बहुत बड़ी चीज बता रहा हूँ अभी आपको। अगर आप बिगिनर है, यू शुड कीप एन आई ओवर हियर। इंसिडेंटली क्या हो रहा है, जो एक XYZ है जिसको रिसर्च का बहुत ज्यादा नहीं समझ है, पर वो भी यहाँ तक कर रहा है वो पैसे देके, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, और उन्होंने ये इन सब के नाम खराब करके रखे हैं। ऐसा नहीं है। स्कोपस Q3
Q3 और Q4 इनमें जेन्युइन जर्नल्स बहुत सारे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ, स्कोपस में लगभग 46,000 या 47,000 जर्नल्स है, इतने सारे जर्नल्स है। इसमें से आप 10% छोड़ दीजिए कि अच्छे नहीं होंगे, या फिर वो छोड़ दीजिए आप, फिर भी Q3 और Q4 में बहुत अच्छी क्वालिटी के जर्नल्स है। आप थोड़ा सा नाम नोट कर लेंगे, इंडर साइंस नाम से एक पब्लिशिंग हाउस है। इनके मैक्सिमम जर्नल हमारे मैनेजमेंट का ही है, ये बहुत सारे जर्नल, आप HR के हैं, मार्केटिंग के, फाइनेंस के, सबके लिए इंडर साइंस में अच्छी खासी लिस्ट है। मेरा सेशन खत्म होने के बाद आप गूगल में जाएंगे, इंडर साइंस जर्नल फाइंडर करके टाइप करेंगे, आपके सामने एक लिस्ट आ जाएंगी, हाइपर लिंक्ड है। जर्नल के नाम पे क्लिक करिए, वहां पे क्रेडेंशियल्स आ जाएंगे। जेन्युइन प्लेटफॉर्म है, आसान है थोड़ा सा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, जैसे मैं रिसर्च विद्या के प्लेटफॉर्म में तो इतने सारे वर्कशॉप्स ले रहा हूँ, और ये चीज मैं आपके साथ शायद पहली बार शेयर कर रहा हूँ, पर मेरे जो रिसर्च विद्या वाले मेंबर्स है, दे आर क्वाइट फैमिलियर विद ऑल दिस डायनामिक्स दिस डेज। तो आप जैसे जिनका स्टैंडिंग था 1 साल 2 साल पहले, उनके पब्लिकेशन सक्सेसफुली इंडर साइंस में हुए हैं Q3 और Q4 के, खास करके इंडर साइंस Q3 ऑफर करता है। और आप जैसे ही लोगों के पेपर्स, नागपुर के ही लोगों के मैं बोल रहा हूँ, जेन्युइन स्कोपस इंडर साइंस के Q3 में पब्लिश हुए हैं। मैं नाम के साथ बता सकता हूँ कि ये बंदे का ये पेपर, इवन मेरा भी एक कोलैबोरेशन हुआ था, वो जो बंदा जिसको मैंने हेल्प किया था इंडर साइंस पे, उसका हुआ एक्सेप्टेंस आया है, अभी रिसेंटली पब्लिश भी हो जाएगा ये 2-4-5 दिनों में। तो ये जर्नी थोड़ी सी आसान हो जाती है। इंडर साइंस एक पब्लिशिंग हाउस है, सेज जर्नल का जो पब्लिशिंग हाउस है बड़ा हाउस है, पर वहां पे प्रोसेसेस जो है इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। वहां पे Q3 और एक MDI नाम से पब्लिशिंग हाउस है, ये ना थोड़े से लेनियंट है, इनके जो रिव्यूज होते हैं वो इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होते हैं, क्योंकि बिगिनर के लिए ये प्लेटफॉर्म है बॉस। और हम लोग क्या करते हैं, एग्जैक्टली उल्टा करते हैं। हम बहुत बड़े लेवल पे अगर चले जाएंगे तो पेपर स्टैंड नहीं होगा। रादर यू शुड नो कि हमारे लिए Q3 Q4 है ना बॉस, वहां पे अच्छे जर्नल्स है, अच्छी क्वालिटी के जर्नल्स है, और वहां पे कंपटीशन थोड़ी सी कम है, लेसर नोन है ये, क्योंकि देखने वाला जो भी बड़े लोग बैठे हमारे फील्ड के बादशाह, वो दे हैव बीन स्ट्राइविंग फॉर Q1 Q2, वहां पे ऑलरेडी भीड़ है, तो वो भीड़ में क्यों जाना है। जहां पे थोड़ा सा वैक्यूम है, वहां पे अगर एफर्ट्स चैनलाइज कर देते हो तो ये जर्नी थोड़ी सी आसान हो जाती है। और एक टिप देता हूँ, फिर मैं रुक जाता हूँ, आई नो वेरी वेल कि मैंने बहुत ज्यादा टाइम ले लिया है। और एक टिप मेरी तरफ से ये है कि आप इंस्टीट्यूशनल जर्नल्स की तरफ थोड़ा सा ध्यान देंगे। जैसे मैंने IIM का बताया, आप MET ले लीजिए, या फिर हैदराबाद का IFS ले लीजिए, इन सब के प्रेस्टीज है, इन सब के ना अपने पब्लिकेशन हाउसेस है, इनकी इंडेक्सिंग है स्कोपस में वगैरह, तो यहाँ से ये जर्नी थोड़ी सी आसान हो जाती है। खास करके इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है हर साल कॉन्फ्रेंस लेती है, उनका कोलैबोरेशन टेलर एंड फ्रांसिस के साथ ही होता है। आप जाइए, अटेंड करिए, पेपर्स आप प्रेजेंट कर दीजिए वहां पे। थोड़ा सा क्वालिटी 19-20 भी है, पर वो डायरेक्टली टेलर एंड फ्रांसिस जो स्कोपस Q3 Q4 और Q2 में भी है उनके कुछ जर्नल, टेलर एंड फ्रांसिस इज अ बिग पब्लिकेशन हाउस, वहां से आसानी से गेटवे मिल जाता है बॉस। एक नॉमिनल APC लेते हैं, क्योंकि वहां से स्पेशल इशू निकल रहा है स्कोपस का। स्पेशल इशू है क्या, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो इंडियन गवर्नमेंट की संस्था है, उनके कोलैबोरेशन के साथ है, तो उस कॉन्फ्रेंस पे अगर 100 पेपर्स आ रहे हैं तो उनके लिए एक स्पेशल इशू निकल रहा है, तो वहां पे गिला सूखा सब जल जाता है। तो हमारे जैसे लोगों के लिए बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है वो, कि हम लोग थोड़ा सा क्वालिटी को लेके कॉन्शियस है, तो वहां से वो हो जाता है। तो और मेरे एक कलीग ने वो किया भी है वहां से, और वेरी सक्सेसफुल एक्सपीरियंस आई एम शेयरिंग विद यू। ये कुछ शॉर्टकट्स हैं स्कोपस तक पहुंचने के। मेरे पास आइडियाज अभी बहुत सारी है, पर आई हैव ऑलरेडी एनक्रोच्ड अपॉन योर टाइम। तो आपके कुछ क्वेश्चंस है तो देख लेते हैं एक बार। मैं रुक रहा हूँ यहाँ पे। If any participant has any question, you can ask. I think Ashish sir has already cleared many of our doubts, but still, if anyone has any doubt, so you can ask. Sir, I have a question. जनरली जो अच्छे जर्नल्स हैं सर, यहाँ पे पब्लिकेशन में काफी समय लग जाता है, तो क्योंकि प्रोसेस काफी लंबा है, तो इसमें कुछ सॉल्यूशन है सर?
ये पेशेंस वाली प्रोसेस है। अभी ये जो है आप बोल रही है कि लगभग 1 से 1.5 साल लग जाता है। जैसे मैं इंडियन जर्नल ऑफ मार्केटिंग, इंडियन जर्नल ऑफ फाइनेंस की अगर बात करता हूँ, तो यहाँ पे 1 से 1.5 साल लग जाता है फर्स्ट कम्युनिकेशन आने के लिए। तो पेशेंस तो लगता ही है, पर एट द सेम टाइम अगर आप बहुत बड़े लेवल के जर्नल की बात करते हो तो इनका कम्युनिकेशन, फर्स्ट कम्युनिकेशन में बोल रहा हूँ, विदिन 3 डेज आ जाता है। और मैंने बहुत बार विटनेस किया हुआ है कि एक दिन में ही फर्स्ट कम्युनिकेशन आ जाता है कि वेदर योर पेपर इज थ्रू और वेदर इट इज रिजेक्टेड। तो ये जर्नल टू जर्नल पॉलिसीज थोड़ी सी अलग अलग हो सकती है, बट स्टिल कुछ जर्नल ऐसे हैं कि जो क्विकली रिस्पॉन्ड करते हैं। मैं जो इंटर साइंस बोल रहा था, पोर्टल सबमिशंस होते हैं, 3 महीने में पहला कम्युनिकेशन आ जाता है, 5वें महीने में पेपर पब्लिश हो जाता है अगर वो थ्रू हुआ है तो। ये आउट ऑफ एक्सपीरियंस ही आएगा कर करके, पर ऐसा नहीं है कि सभी जर्नल में ये बहुत लेंथी प्रोसेस है, ऐसा नहीं है। कुछ जगह है कि साल 1.5 साल तक वो कम्युनिकेट ही नहीं करते हैं। जर्नल सिलेक्शन इज क्वाइट ट्रिकी। और इसमें क्या है, जैसे आपके पास पेशेंस, मुझे क्या समझ में आया ओवर द पीरियड, आई यूज्ड टू मेक दिस मिस्टेक्स ओनली, कि हम लोग एक पेपर लिखते थे, सबमिट करते थे, फिर राह देखते थे कि कब पब्लिश होगा, क्या कम्युनिकेशन आएगा। देन आई रियलाइज कि यार व्हाई टू वेट, आप सबमिट करिए, भूल जाइए, दूसरे पेपर पे लग जाइए। यानी क्या, यू कीप ऑन राइटिंग कंटिन्यूअसली और सबमिशन करते रहिए, तो वो जो साइकिल चलती है ना, उसमें पता नहीं चलता टाइम कैसे चला गया। राइट सर। आई थिंक आई हैव वन क्वेरी। सर, जैसे स्कोपस में इंडेक्सिंग होती है, तो ये इंडेक्सिंग सिर्फ जर्नल, जो जर्नल में पब्लिश करते हैं उनका ही वैल्यू ज्यादा रहता है क्या? क्योंकि IEEE के जो कॉन्फ्रेंस होते हैं उनकी भी इंडेक्सिंग होती है स्कोपस में, देन बुक चैप्टर्स की भी इंडेक्सिंग होती है। तो क्या जो वैल्यू बिल्ड होती है हमारी एज एन ऑथर, तो वो जर्नल की वजह से ही होती है या ओवरऑल, मतलब IEEE कॉन्फ्रेंस के थ्रू हो जाए?